Section 66. Good evening, Vivek ji. Good evening, ma'am. Good evening. All good? How are you? Yes, ma'am, I'm fine. Welcome to Ahmedabad branch. Is this the first time, I guess? Yes, thank you. Great, great, great. Just our chairman is joining in a minute. We'll start. Sure. Good evening. Good evening, Vivek ji. Good evening, sir. Yeah. Good evening. So we can start. Okay. Okay. Yeah. A very good evening. Welcome to this day 4 of the Excel series. Esteemed faculty for today, C.A. Vivek Gupta ji from Bombay, Chairman Ahmedabad branch C.A. Harit Dhariwal, Coordinator of the series C.A. Jhalak Parikh, Coordinator of today's session C.A. Nikita Piani, senior members and my dear friends. We are getting an overwhelming response and we love to look at the feedbacks. Glad that you all are learning and making it the best in these difficult times. We are grateful to all our esteemed speakers across India for their prompt acceptance and delivering and sharing their valuable time with us. Beginning the session, now request each one of you to place their right hand on their heart for ICI motto. Request Shehzad Bhai to play the ICI motto. य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्द्वैता 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 Welcome back. Request everyone to mute themselves. Taking the session ahead, I would now request Chairman Ahmedabad branch C.A. Harit Dhariwal to give opening remarks.
Thank you, Anjali Ben. A very good evening to all the members. Thank you to Vivek ji, who has joined us today for the session from Thane. Thank you, Vivek ji, for joining us for the wonderful Excel series. We are actually, as Anjali Ben said, grateful to all the faculty. I think we are taking the best advantage of the virtual world and getting the best faculties for our Excel series. Just one quick announcement. I think apart from this GST series that is going to start from tomorrow, we are also coming up with an initiative wherein we are going to provide a platform to the first time speakers, or maybe you can say young speakers. So we are just going to launch a platform now. It is called Opportune, and basically we'll be giving an opportunity, and not only opportunity, I'll tell you, we'll also groom the speakers. So we have the entire schedule wherein we'll be grooming them with the live, with the soft skills and everything. Apart from that, we'll also be giving them a training under a seasoned speaker. So with that, they will be able to take sessions even at Ahmedabad branch. So that is going to launch in some time. So those who are the first time speakers or want to take this opportunity of becoming a speaker, because when we all see all expert speakers, we also have somewhere a desire in our heart that we also want to speak and go out and speak in front of our members. So if you want to fulfill that, please join us for this initiative. The Google link as well as the mail will go out in some time. And nothing else to be announced. I think now let us all get back to Excel. Thank you so much, Anjali Ben, and thank you, Vivek ji, for joining us for today's session. Thank you. Thank you, Chairman sir, for your guidance and important updates. I'm sure each one of us from our bottom of our heart would be interested that मैं कहीं ना कहीं कुछ contribute करूँ. So I'll request all the members to take the maximum advantage of it. Taking the session ahead, I would now request CA Jhalak Parikh to introduce the esteemed faculty for today, CA Vivek Gupta ji. A very warm welcome. Vivek Gupta is presently working with GMJ and Company Chartered Accountants as Executive Taxation and Audit Automation. He has completed his graduation from KPB Hinduja College of Commerce and is an associate member of ICI since April 2019. He is passionate in working with and exploring Microsoft Excel and other automated tools, and is having an experience of over more than 7 years in the field of data analysis and automation, and has developed various automated tools in areas of audit, taxation, accounts, and HR for building accuracy and efficiency in routine work process. He has delivered more than 15 webinars on MS Excel in various study circles, including internal training sessions during lockdown period. Vivek ji has also won second position in the corporate level event Excel Quiz Master, organized by the IT Club of New Delhi Institute of Management. He is implementing various Excel power tools and functionalities and ensuring that what you learn is much more than just theoretical knowledge. He is also admin of Exciting Excel query solving group on WhatsApp and Telegram with over more than 13,000 members. That's really great, sir. So now I would request sir to take charge of the session. Thank you, Jhalak ma'am, for your wonderful introduction. Thank you, Anjali ma'am. Thank you, Harit sir, and the entire team of Ahmedabad WRC branch for initiating this session and giving me the opportunity to share my knowledge with the entire SAFE fraternity. So to begin with, let me share my screen first. My screen is visible to all. Yes, sir. Yes, so to begin with today's session, I'm taking on TDS returns data analysis. So friends, जैसे कि हम सबको पता है कि हम सब है, तो we all know the TDS compliances that we have to make in our routine life, in our CA life. हम clients के returns file करते हैं, फिर उसमें form 26 AS updates होता है, उसके बाद डिडक्टी को जो असेसी उसको क्रेडिट मिलता है. तो बेसिकली जो टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का जो प्रोसीजर है वो अगर डिडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं तो डिडक्टर को सबसे पहले अगर किसी का टीडीएस डिडक्ट करना है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. जैसे कि वो सबसे पहले देखेगा कि कितना अमाउंट क्रॉस हो रहा है कि नहीं, अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन में उसको डिडक्ट करना है. तो फिर उसके बाद अगर क्रॉस हो रहा है तो वो कौन से सेक्शन में उसको डिडक्ट करना है.
और फिर कौन से सेक्शन में डिडक्ट करने के बाद उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन से रेट में डिडक्ट करना है टीडीएस। इसकी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट रेट्स प्रोवाइड किए हुए गवर्नमेंट ने, तो वो उसको ध्यान में रखना पड़ता है। और फिर अगर डिडक्ट करने से पहले उसको ये भी देखना पड़ता है कि जो असेसी है उसका ये अपना प्रोप्राइटर है, वो फर्म है, कंपनी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको डिडक्ट करना पड़ता है। और फिर एक बार वो डिडक्ट कर देता है उसके बाद उसको जो टीडीएस जो कलेक्ट करता है डिडक्ट करके, तो उसको वो 7th ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ उसको वो डिपॉजिट करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास। और फिर क्वार्टरली उसको टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करने पड़ते हैं। तो ये बहुत सारे प्रोसीजर है टीडीएस के लिए। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि टीडीएस रिटर्न्स जो डिडक्टर जो फाइल करता है डिडक्ट करने के बाद, तो उसमें वो क्या क्या अपने क्रॉस चेक्स या अपना डेटा एनालिसिस कर सकता है ताकि वो इंश्योर हो सके कि जो भी उसने रिटर्न फाइल किया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट 100%, कोई भी डिफॉल्ट नहीं आएगा। कोई भी अगर उसको सामने वाले को क्रेडिट लेना है तो उसके फॉर्म 26 या इसमें करेक्टली रिफ्लेक्ट होना चाहिए। So to begin with the session, in this session I'm going to cover this many topics. So firstly, in income tax TDS returns, उसके अंदर I am going to show you the analysis, data analysis using wildcard filters, and then the various TDS cross checks using various logical and lookup functions, and then how to calculate the interest, the 1.5% जो लेट डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट भरना पड़ता है अगर टीडीएस लेट डिपॉजिट किया, तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड देन द डेटा वैलिडेशन एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर मोर एनालिसिस। सो अगर हम देखें, लेट मी शेयर दिस टीडीएस रेट चार्ट। इसमें हम देखते हैं कि सब सेक्शन के हम लोग को रेट्स दिए हैं। तो बेसिकली जो कॉमन सेक्शन जो हम लोग नॉर्मली एक जो काम में आते हैं, जो फ्रिक्वेंटली जो रहते हैं, वो है 194A, C, H, I and J। तो इसमें आप देखोगे कि 194A में 50,000 है। तो सीनियर सिटीजन अगर बैंक्स अगर इंटरेस्ट अगर दे रही है तो 10% डिडक्ट करना पड़ता है। फॉर नॉन सीनियर सिटीजन इट इज 40,000। 190C में आप देखोगे तो 30,000 एंड 1 लाख है, 1% अगर इंडिविजुअल एचएफ को पेमेंट कर रहे तो। और अगर अदर्स को पे करे, नॉन इंडिविजुअल एचएफ जैसे कि फर्म हो गया, कंपनी हो गया, तो उसके लिए वी हैव टू डिडक्ट एट द रेट ऑफ 2%। देन 194H अगर कमीशन का पेमेंट कुछ है तो 15,000 लिमिट एंड 5% इज द रेट। एंड 194I 2,40,000 इज द लिमिट एंड 10% इज द रेट फॉर फर्नीचर एंड बिल्डिंग। और अगर 194I में अगर प्लांट और मशीनरी अगर रेंट पे दे रहे तो उसके लिए वी हैव टू डिडक्ट 2% इन रेंट। And last 194J professional fees which we have to deduct 10% rate if the amount is exceeding 30,000। तो ये अपना प्राइमा फेसी जो है रेट्स अपन नॉर्मली देखते हैं टीडीएस रिटर्न्स में। So let me share now the TDS return file, sample file. So this is basically a TDS return file, a template, जिसमें दो शीट सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं टीडीएस रिटर्न फाइलिंग में। अगर कोई भी डिडक्टर अगर रिटर्न फाइल कर रहा है टीडीएस का, तो बेसिकली उसमें दो शीट इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो चालान्स शीट, जो उसने क्या क्या चालान्स के थ्रू वो डिपॉजिट कर रहा है वो, एंड सेकेंड इज डिडक्टिव शीट। तो फर्स्ट व्हाट इज चालान शीट एंड व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन इज going in challan sheet, and then I will show you the analysis part, the data analysis part. So let me give you the overview of this first. तो ये चालान शीट में आप देखोगे कि इसमें सेक्शन नंबर है कि कौन से सेक्शन में डिडक्ट किया है टीडीएस। उसके लिए मैंने ड्रॉप डाउन यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा है। फिर ड्रॉप डाउन कैसे बनाने ये भी मैं आई विल शो यू इन द लेटर पार्ट। देन टीडीएस, हम कितना टीडीएस अमाउंट डिपॉजिट कर रहे गवर्नमेंट को। द इंटरेस्ट, अगर लेट डिपॉजिट पे कुछ इंटरेस्ट अगर भरा है एट द रेट ऑफ 1.5%, तो दैट विल कम इन दिस कॉलम। लेट फीस, अगर लेट फाइलिंग फीस कुछ है अंडर सेक्शन 234E, तो इट विल कम इन दिस कॉलम। एंड दिस इज द टोटल टीडीएस डिपॉजिटेड। एंड हियर इट इज द BSR कोड, इट इज कंपल्सरी टू बी ऑफ 7 डिजिट्स, जो यहाँ पे मैंने कॉलम में मेंशन किया है। तो अगर इसमें आप देखोगे, अगर मैं 6 डिजिट कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट, अगर किसी ने 6 डिजिट डाला है
तो इट विल हाईलाइट इन रेड कलर एंड हियर इट विल शो फॉल्स, तो जिससे तुरंत सामने वाले को पता चल जाएगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो ही कैन वेरीफाई इट। इसमें अगर समझो कोई अगर यहाँ से अगर कोई 6 डिजिट अगर ऐसा है या 5 डिजिट है, तो तुरंत वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा तो फिल्टर मार के वो तुरंत फॉल्स या इस पे फिल्टर मार के चेक कर सकते हैं। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शो यू कि सपोज इसमें 6 डिजिट का है, तो अगर आप फिल्टर इसमें मारोगे कि 6 डिजिट पे सपोज मुझे फिल्टर मारना है कि फिल्टर अगर जो BSR कोड है अगर वो 6 डिजिट का है, तो इफ यू नॉर्मली सी यहाँ पे हम लोग को लेंथ वाइज फिल्टर करने का ऑप्शन नहीं है कि कैरेक्टर्स अगर सेल में इतने कैरेक्टर्स है तो वो मुझे फिल्टर करके चाहिए। तो फॉर दैट वी हैव टू यूज, सपोज अगर आप नॉर्मल किसी को अगर आप दोगे फाइल, तो व्हाट विल डू सेट वन कॉलम, विल चेक द लेंथ ऑफ इट एंड उसके बेसिस पे ही विल फिल्टर आउट कि 6 वाले है तो इसमें क्या गड़बड़ है। बट लेट मी शो यू कि हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं फिल्टर में। इफ यू गो टू टेक्स्ट फिल्टर्स and equals, here you can see it is written use question mark represent any single character and use an asterisk mark to represent any series of characters। अगर आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक मार्क जो है ये these are वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स इन एक्सेल। तो इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, सपोज वी हैव टू फिल्टर दिस 6 डिजिट BSR कोड, तो वी विल यूज अ 6 क्वेश्चन मार्क, 1 2 3 4 5 6, हमको बस ये 6 क्वेश्चन मार्क डालना है और एंटर प्रेस करना है। तो आप देखोगे जो भी 6 डिजिट कैरेक्टर्स का जो भी कॉलम में है उसको फिल्टर मार के दे देगा। दिस वी हैव डन फिल्टर यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं एक्सेल में। तो अगर 5 डिजिट का कोई है तो वी हैव टू जस्ट राइट 5 डिजिट, आप यहाँ पे भी 5 डिजिट लिख सकते हो, बट 5 डिजिट का कुछ नहीं है, बस 6 डिजिट 6 क्वेश्चन मार्क इफ यू राइट यू विल गेट द 6 डिजिट कैरेक्टर्स BSR कोड। तो दिस इज द वन वे यू कैन एनालाइज द फिल्टर। और अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई किया है जैसे मैंने करके रखा ऑलरेडी, तो रेड कलर हो जाएगा, तो यू कैन ऑल्सो फिल्टर देम बाय कलर, रेड कलर, तो विच इज आई गेस विच इज मोर सिंपल। बट अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आपने यूज नहीं किया है तो द ओनली वे टू फिल्टर इज बाय यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। ओके, सो मूविंग अहेड, लेट मी अनडू द सेम। नाउ दिस इज डेट ऑन विच टैक्स डिपॉजिटेड, तो ये हमने एक्चुअली गवर्नमेंट को कौन से दिन पेमेंट किया है, चालान भरा है, उसका ये डेट आ जाएगा जो कि हम लोग को नेक्स्ट मंथ के 7 तक भरना रहता है। तो वो एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट यहाँ पे आ जाएगा विच शुड बी इन DDMM 5 फॉर्मेट। यहाँ पे चालान नंबर विच शुड बी 5 डिजिट नंबर कंपलसरी। अगर 6 डिजिट है, सपोज दिस इज 6 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे रेड आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे जो फॉल्स आ रहा है इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या फॉर्मूला डाला है, लॉजिकल क्रॉस चेक्स, इट्स अ बिट लॉन्ग फॉर्मूला बट डोंट वरी, शो यू ऑल। यहाँ पे अगर 6 डिजिट है या 4 डिजिट है तो इट विल हाईलाइट द सेम, एंड इन द सेम वे वी कैन फिल्टर बाय 4 डिजिट्स, so we can use 4 question marks and to filter the same। अगर सब एक साथ देखना है गलत वाले तो फिल्टर बाय कलर, we can use this, रेड कलर के सब आ जाएगी एक साथ। नेक्स्ट थिंग इज whether TDS deposited by book entry। इसमें आप देखोगे कि मैंने ड्रॉप डाउन भी डाल के रखा है yes और no का, एंड देयर इज ऑल्सो फॉर्मूला इन अ सिंगल सेल। तो ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, अगर आप देखोगे कि इसमें दोनों चीज है, ड्रॉप डाउन भी है और फॉर्मूला भी है। तो बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मूला से आंसर कर रहा है कि अगर इफ B6 इक्वल्स टू ब्लैंक तो ब्लैंक आउटपुट आना चाहिए, वरना बाय डिफॉल्ट n आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी टाइम n ही आता है, इनफैक्ट 99.99%। तो अगर कभी बाय चांस सपोज येस आया है, इसलिए ड्रॉप डाउन का भी ऑप्शन ओपन रखा है। तो हाउ वी कैन डू दिस बोथ द थिंग्स इन वन सेल, वी नीड टू गो टू डेटा टैब and here data validation, here you have to select the allow list option। इसमें आपको सोर्स डालना है, सोर्स आप एक रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, शीट से कोई भी, या तो अगर कुछ 2 से 3 कुछ है अगर वैल्यूज, तो आप कॉमा सेपरेट करके भी डाल सकते हो, यस कॉमा नो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल के रखा है।
और फिर इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप फॉर्मूला भी यूज करना चाहते हो साथ में, तो यू हैव टू गो टू एरर अलर्ट एंड अनचेक दिस ऑप्शन, शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डेटा इज एंटर। अगर ये चेक रहेगा तो वो फॉर्मूला एंटर नहीं करने देगा, वो एरर देगा स्टॉप वाला। तो you have to remember to uncheck this option so you can use both the formula as well as data validation in single cell. Same logic I have used here, 200 and 400 का ड्रॉप डाउन भी डाल के रखा है मैंने, एंड फॉर्मूला से भी 200 आ रहा है। आपको बेसिकली आप जो भी फॉर्मेट बना रहे हो वो आपको यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने के, यूजर अगर इसको फिल करेगा तो उसके लिए एकदम आसानी हो जानी चाहिए भरने के लिए, उसको कोई ऐसा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आप अगर डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे तो फिर आपको बहुत परेशानी होगी जब ये एक्चुअली लोग जब एग्जीक्यूट करेंगे इसको फॉर्मेट को। तो जैसे कि आप देख सकते हो इधर जो फील्ड जो काम की नहीं उसको मैंने क्रॉस बॉर्डर्स करके रखे ताकि इस पे ध्यान देना ही नहीं है, इस पे ये अप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि नॉन सैलरी का टीडीएस रिटर्न है, तो इसमें सरचार्ज और एजुकेशन सेस इज नॉट अप्लीकेबल एंड अदर्स आल्सो इज नेवर अप्लीकेबल, सो आई हैव क्रॉस मार्क्ड इट। एंड चेक नंबर, चेक से कोई पेमेंट करता नहीं है, आई डोंट थिंक सो, आज के ज़माने में सब ऑनलाइन के ज़माने में, तो इसके लिए ये भी पूरा क्रॉस मार्क करके रखें। Then coming to this interest allocated, इसमें I have linked it to interest figure, भी मैं आपको बताऊंगा बाद में कि allocated क्या होता है, and other amount allocated ये भी सेम है, जो कि कभी यूज में आता नहीं, इधर हार्डली कभी कुछ अमाउंट आता होगा others, and these are the various cross checks which I will show you now. इसके पहले मैं आपको ये लॉजिकल चेक्स बता देता हूँ जो मैंने इधर लगाए हैं, तो तुरंत हाईलाइट हो जाते हैं। इसमें आप देखोगे कि मैंने एंड फंक्शन यूज किया है। एंड मतलब इसमें आप जो भी कंडीशंस दोगे अगर वो सब ट्रू हो रहे हैं तो इट विल शो यू ट्रू। तो इसमें मैंने आप देखोगे एक मैंने कंडीशन दिया है, काउंट A2 से Q2 if this range contains total 13 values, so it will show true. Wait, let me evaluate this formula to better understand it. We will go to formula tab and evaluate formula. This is the window in which you can evaluate your formula step by step कि true ये कैसे evaluate करके दे रहा है। तो इसमें आप देखोगे पहले B2 सेल चेक करेगा वो, तो B2 is not blank, 194H उसमें लिखा हुआ है, this is not blank, so it will further analyze the formula. So this is the first condition, आप देख सकते हो ये अंडरलाइन है, तो it is the first condition that the formula will evaluate. Count A means count all, it will count all the non-blank cells in the range. So A2 से Q2 रेंज में टोटल 13 नॉन ब्लैंक आइटम्स होने चाहिए, मतलब कि 13 फिल्ड आइटम्स से कुछ ना कुछ उसमें डेटा होने चाहिए 13। So since it is 13, it is true. Then length of K2, this is the BSR code जिसका लेंथ मैंने बताया कि 7 कैरेक्टर्स कंपलसरी होना चाहिए। So if it is 7, it will show true. Yes, it is true. Then the length of M2, चालान serial number compulsory, it should be 5 digits. तो यहाँ पे उसका भी क्रॉस चेक डाला है, it is 5. And then comes the P2 less than F2. P2 is interest allocated column and F is interest column. तो बेसिकली इसमें जो भी इंटरेस्ट अगर आता है तो F कॉलम में टू शो द टोटल इंटरेस्ट जो भी हमने चालान में भरा है, और P कॉलम में इंटरेस्ट एलोकेटेड इज अ कॉलम कि हाउ मच इंटरेस्ट इज एलोकेटेड इन दिस पर्टिकुलर रिटर्न। कैसा हो सकता है कि हम लोग एक चालान मल्टीपल रिटर्न्स में यूज कर सकते हैं कि अनकंज्यूम्ड उसमें कुछ अमाउंट है, कुछ बैलेंस है, तो हम लोग सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स के रिटर्न में भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली this P2 amount, this interest allocated should be less than or equals to interest column, actual interest paid. अगर ये exceed हो रहा है तो it should give false. exceed नहीं हो सकता कि इंटरेस्ट भरा ही हमने 48 रुपीज है तो उससे ज्यादा हम एलोकेट नहीं कर सकते इन दिस पर्टिकुलर रिटर्न, so it will show false. So 0 less than 0 since in row number 2 it is blank. Then length of B2, B2 is a section column जिसमें कंपलसरी 4 डिजिट ही आने चाहिए कि 194A 194C। तो इसमें देखोगे 194H which is the 4 कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे सब ट्रू आ रहा है
So since all the conditions are true, all the 5 conditions are true, and will give you true. तो आप देख सकते हो लॉजिकल जो लॉजिकल इसका जो टेस्ट है इफ कंडीशन का, दैट इज ट्रू, एंड सो इफ इट इज ट्रू आई हैव गिवन ट्रू एज द आंसर, एंड फाइनल आउटकम इज ट्रू। तो इसमें अगर एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है, सपोज किसी ने यहाँ पे सेक्शन में कुछ और पेस्ट कर दिया, सपोज 1 यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे रेड हो जाएगा एंड यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि एंड अगर आप कंडीशन यूज कर रहे हो, फंक्शन यूज कर रहे हो, तो उसमें सब ट्रू होना कंपलसरी है। तो ऐसे आप क्रॉस चेक्स लगा सकते हो, दिस इज एन एग्जांपल। तो आप ऐसे अगर आपके दिमाग में कुछ और भी आता है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। इसमें आप टोटल एंड में 255 कंडीशंस इट कैन सपोर्ट, एंड मैंने तो सिर्फ 5 कंडीशन डाले, आपके दिमाग में कुछ और ऐसे क्रॉस चेक्स आते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो अगर सब ट्रू हो रहे तो इट विल शो यू ट्रू। और यहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल वाला लगाया है, दैट आई विल शो यू conditional formatting and manage rules to identify what conditional formatting has been put. इसमें आप देखोगे सेल वैल्यू कंटेन्स फॉल्स, ये सिंपल है। सेल वैल्यू अगर मैंने स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेनिंग अगर फॉल्स आ रहा है कहीं पे भी एक कॉलम में, तो इट विल हाईलाइट विथ रेड कलर। यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग सेट कर देना कि फॉर्मेटिंग फिल शुड बी रेड कलर एंड फॉन्ट बोल्ड एंड कलर वाइट। यहाँ पे वाइट है इसके लिए कुछ दिख नहीं रहा, अगर आप ब्लैक करोगे दिखेगा, तो लेट इट बी वाइट ओनली। सो दिस इज अबाउट द चालान शीट। इसके ऊपर मैं बाद में होगा ये क्रॉस चेक। टू एक्सप्लेन दिस क्रॉस चेक आई हैव टू फर्स्ट मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द डिडक्टिव शीट। अभी ये मैंने एक चालान शीट तो इसमें भर दिया, बता दिया आपको। इसमें आप देखोगे कि इसने पर्टिकुलरली टोटल 23 चालान्स पे किए। तो अभी इसने चालान तो पेमेंट कर दिया, पर अभी गवर्नमेंट पूछेगी कि ये जो आपने चालान जो भरा है 194H सेक्शन में, ये TDS 22,000 ये किसका काट के भरा है आपने, कौन से SSC का काटा है? ये जो सेकंड चालान में जो आपने 1057 जो दिखा है 194C, इसके अगेंस्ट डिडक्टिव कौन कौन है, किसका काटा है, क्या रेट से काटा है, वो उसका सब डिटेल जो है दैट कम्स इन डिडक्टिव शीट। तो आप देखोगे फर्स्ट सीरियल नंबर है which is based on the चालान शीट फॉर मैपिंग। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे चालान शीट में फर्स्ट सीरियल नंबर is showing 22,076. So if you will filter here the first चालान, you will see 195 section and the total TDS amount is 22,076. In the same way, if you see the second चालान, the second चालान is total amount 1,057. So if you filter the second चालान, you see the total amount is 1057, जिसमें ये सब पार्टीज का TDS काटा है, जिनके पैन नंबर ये है, एंड द रेट ऑफ डिडक्शन इज दिस। तो इसमें मल्टीपल डिडक्टिव्स भी पॉसिबल है, मतलब मेजोरिटी रहते ही है कि एक चालान में आप मल्टीपल डिडक्टिव्स का भी पेमेंट कर सकते हो। तो इसमें अभी जैसे कि ये केस में टोटल 23 पार्टीज है, तो आप हर एक 23 चालान फिल्टर करके देखोगे तो एक एक करने में बहुत टाइम जाएगा। कि TDS आप देखोगे 29,000 है, 29,000 है, करेक्ट। आप एक एक देखने वेरीफाई करने जाओगे बहुत टाइम जाएगा। तो 23 चालान से अगर 100 चालान हो गए तो कम से कम इसमें आपका आधा 1 घंटा चला जाएगा। तो इसके लिए ये क्रॉस चेक डालें यहाँ पे कि डिडक्टिव शीट से जो भी टोटल है वो यहाँ पे आ जाएगा फैच होके। तो ये कैसे आएगा, लेट मी शो यू। इसमें आप देख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया तो तुरंत ही येलो कलर में हाईलाइट हो गया, विच शोज कि इसमें डिफरेंस है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कि इसमें डिडक्टिव शीट में कुछ भी अमाउंट गया नहीं है क्या। तो वो वी विल वेरीफाई कि फर्स्ट चालान के अगेंस्ट टोटल जो डिडक्टिव का जो पेमेंट किया है उसका टोटल कितना है डिडक्टिव शीट में। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको टोटल करके बताया, फर्स्ट चालान the total should reflect as 22,076. So for that Excel provides a function for us, that is sum if function। बहुत ही सिंपल फंक्शन है एंड वाइडली यूज्ड फंक्शन है। मतलब एक्सेल में अगर सम इफ आपको नहीं आता है तो मतलब ऐसा है कि कुछ नहीं आता है। तो सम इफ तो ये बेसिक फंक्शन है, आपको सबको आना चाहिए। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, अगर जिसको नहीं आता है तो कैसे आ सकता है सम इफ फंक्शन से।
तो इसमें आप देख सकते हो 3 टोटल आर्ग्यूमेंट्स है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज रेंज, आपका क्राइटेरिया रेंज क्या है। तो योर क्राइटेरिया रेंज इज दिस, फुल कॉलम आई एम गिविंग कि ए कॉलम में मेरा क्राइटेरिया है चालान नंबर, सीरियल नंबर, कॉमा क्राइटेरिया रेंज। अभी क्राइटेरिया रेंज इज ए कॉलम, अभी उसमें पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है आपका। तो माय क्राइटेरिया इज दिस कि वो क्राइटेरिया रेंज में वो फर्स्ट कॉलम में जहाँ पे 1 आ रहा है उसका मुझे टोटल फिर टीडीएस बता यहाँ से एस कॉलम से। सम रेंज विल बी माय एस कॉलम, क्लोज द ब्रैकेट एंड सिंपली प्रेस एंटर। तो आप देखोगे कि इसने टोटल लाके दे दिया कि डिडक्टिव शीट में वो क्राइटेरिया रेंज में जहाँ पे क्राइटेरिया मेट हो रहा है, मतलब वो रेंज में जहाँ पे 1 आ रहा है, इट विल सम द रेंज फ्रॉम द एस कॉलम, टीडीएस कॉलम का वो सम लिखे देगा। तो नाउ let us copy this formula below। आप देखोगे सबका सम करके दे दिया उसने। ये भी जैसे सेकंड चालान है तो ये कॉलम पूरा देखेगा, ये कॉलम में कि जहाँ पे ये कॉलम में 2 आ रहा है तो उसका करस्पॉन्डिंग ये कॉलम में सम कितना है। तो दैट इज द बेसिक फंक्शन हाउ द सम इफ वर्क। तो एक बार आपने डिडक्टिव शीट से फिगर्स फेच कर लिए टीडीएस के, तो इसमें आप डिफरेंस कॉलम डायरेक्टली बना सकते हो कि दिस अमाउंट माइनस द एक्चुअल चालान का अमाउंट कितना है। तो अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो इसमें हाईलाइट हो जाएगा, जैसे कि इसमें आ रहा है कि डिडक्टिव शीट में इधर 9,74,140 है, बट व्हाट द पेमेंट हैज एक्चुअली बीन डन इज 9,74,515। मतलब हमने एक्सेल डिपॉजिट किया है 515। अब देखोगे 375 एक्सेल डिपॉजिट किया है। तो क्योंकि ये एक्सेस डिपॉजिट है तो इसके लिए इट इज शोइंग इन येलो कलर। मतलब ज्यादा डिपॉजिट करोगे तो कोई नुकसान नहीं है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट तो खुशी खुशी ले लेगी। बट अगर कम डिपॉजिट करते हो तो गवर्नमेंट आपका कान पकड़ेगी कि आपने कम डिपॉजिट कैसे किया, आपने टीडीएस तो डिडक्ट किया, वो आपने डिडक्ट किया 9,74,140। अब सपोज आपने खाली पेमेंट किया होता गवर्नमेंट को 9,74,000 का, तो अब देखोगे यहाँ पे रेड आ रहा है 140, विच शोज कि ये रेड अलर्ट है, कुछ गड़बड़ है, कम नहीं हो सकता। आप जितना डिडक्ट करो उतना तो आपको पे करना ही है, अगर ज़्यादा पे करोगे तो आपकी खुशी। तो इसमें अभी मैंने क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया होगा, लेट अस चेक। इसमें भी सिंपल है, होम टैब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रोज। इसमें हम देखोगे सेल वैल्यू अगर लेस देन 0 है so I have given the yellow color format, and cell value greater than 0 I have given the yellow color form, red color formatting। एंड ये दोनों रेंज में ए सी कॉलम है एंड ए ई कॉलम में। इंटरेस्ट में भी सेम मैंने फॉर्मूला लगाया, इंटरेस्ट एज पर डिडक्टिव शीट। इसमें भी वी हैव टू यूज सम इफ फंक्शन, एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है। तो सम इफ द रेंज इज सेम रेंज, क्राइटेरिया रेंज, दिस इज द क्राइटेरिया रेंज। इन दिस द सेकेंड क्राइटेरिया इज अगर चालान नंबर यहाँ पे मैच होता है तो हमको टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है ये चालान में, we have to fetch it from here। This is the interest calculation part from BL column to BQ column, and total interest is calculated in the BQ column। So I will press enter कि टोटल फर्स्ट चालान में कोई भी इंटरेस्ट नहीं गया। and if you copy it down, simply press Ctrl D to copy the formula down। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जहाँ पे भी अगर चालान गया है तो वहाँ पे वो शो करेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल चालान शीट। नाउ लेट अस कम टू द डिडक्टिव शीट। इसमें बेसिकली इंटरेस्ट कुछ आई थिंक अभी आ नहीं रहा है, तो लेट अस कम टू दिस पार्ट लेटर। तो ये फर्स्ट कॉलम का मैंने आपको रेलेवेंस बता दिया, इट इज बेस्ड ऑन चालान शीट फॉर मैपिंग कि फर्स्ट में कितना डिडक्टिव का पे करो, सेकंड में कितना करो एंड सो ऑन। यहाँ पे सेक्शन कोड जिसमें मैंने सिंपल ड्रॉप जो भी रेलेवेंट सेक्शन है सिर्फ उनके ACHI। अगर आप सब डाल दोगे तो उसको कंफ्यूजन होगा सामने वाले को भरते वक्त कि जो जो उसके काम का है सिर्फ वही डालो, ताकि उसको ज़्यादा स्क्रॉल भी ना करना पड़े
और जो रेलिवेंट जो यूज में रहते हैं, जो मेनली जो काम आते हैं, वो सिर्फ आप यहाँ पे सेक्शन डाल दो। और सेक्शन कैसे डालने का, सेम ड्रॉप डाउन लिस्ट डेटा, डेटा टैब, गो टू डेटा वैलिडेशन, यानी लिस्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा ऑलरेडी, मेरे पास लिस्ट है BU6 से BU13 तक। अब देखोगे यहाँ पे मैंने सब सेक्शन नंबर लिख के रखे हैं, तो यहाँ से आप लिंक भी दे सकते हो। अगर कुछ 2-3 वैल्यू है, जैसे कि मैंने बताया था y, n, तो आप टाइप भी कर सकते हो, बट इट इज प्रेफरेबल टू सिलेक्ट अ रेंज एंड गिव द सोर्स। सो दिस इज द सेक्शन। अगर यहाँ पे भी अगर आप कुछ और अगर वैल्यू पेस्ट कर देते हो, तो आप देखो कि रेड कलर आ जाते हैं। यहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाल के रखा है कि लेंथ शुड बी इक्वल्स टू 4। अगर 4 के ऊपर है तो इट विल गिव रेड कलर, जिससे तुरंत आंखों में दिखेगा रेड कलर की मिस्टेक है, डेंजर है वहाँ पे। तो नाउ दिस इज द डिडक्टिव कोड। डिडक्टिव कोड इज बेसिकली 2 ऑप्शंस, अदर्स और कंपनी। तो अदर्स और कंपनी का कैसे पता चलेगा, फ्रॉम द पैन नंबर, ऑब्वियसली फ्रॉम द पैन नंबर 4th कैरेक्टर। अगर आप 4th कैरेक्टर, आपको पता होगा कि पैन का 4th कैरेक्टर शोज द स्टेटस ऑफ द असेसी, कि वो इंडिविजुअल है, HUF है, कंपनी है, फर्म है। तो अगर इसका 4th कैरेक्टर P है तो यहाँ पे अदर्स आना चाहिए। तो अगर अदर्स की जगह पे अगर आपने कंपनी सिलेक्ट किया तो इट विल गिव यू रेड कलर, और आगे दिखाएगा। यहाँ पे सब क्रॉस चेक्स बनाए हैं, डिडक्टिव कोड चेक में फॉल्स आ गया। तो ये भी ड्रॉप डाउन से सही से चेक करना पड़ेगा। अब ये पेन है, अगर इसको आपको चलो फिल्टर मार के चेक करना है, तो सपोज मेरे को इस पे कंपनी है कि नहीं चेक करना है, मुझे 4th कैरेक्टर पे फिल्टर लगाना है कि पेन का 4th कैरेक्टर जो है वो C है कि नहीं। तो डायरेक्टली यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे टेक्स्ट फिल्टर में जाना है, इक्वल्स, मुझे यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज करना पड़ेगा। तो आई वांट कि 4th कैरेक्टर C होना चाहिए। तो स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 क्वेश्चन मार्क्स एंड 4th कैरेक्टर शुड बी C। एंड सिंस पैन का टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज 10, तो आगे कुछ भी होने दो चलेगा। तो इसके लिए आपने एस्ट्रिक मार्क यूज किया, विच रिप्रेजेंट्स एनी सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स। तो 4th कैरेक्टर इस पे वो C पे फिल्टर लगा के देगा आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसका भी 4th कैरेक्टर C है, बेसिकली जो भी कंपनीज है वो सबके पेन को फिल्टर लगा दिया उसने एक साथ। तो आप यहाँ पे फिल्टर में आके चेक कर सकते हो कि इसमें अदर्स भी आ रहा है क्या। अगर अदर्स आ रहा होता तो वो रेड मार्क कर देता, और फिल्टर बाय कलर भी एक्टिवेट हो जाते हैं यहाँ पे। सो इट इज प्रॉपर। So let me clear the filters. Alt A C clear all filters. अगर आपको फिल्टर करना है वाइल्ड कार्ड से, तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली टाइप कर सकते हो क्वेश्चन मार्क C, एंड जैसे ही आप स्टार्ट टाइप करोगे तब कंपनी के पेन को फिल्टर लग जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वंडरफुल वे टू फिल्टर बाय स्पेसिफिक कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट। यहाँ लिखोगे तो ये जहाँ पे भी पेन में C आ रहा है वो सब पे फिल्टर लगा देगा। तो इट इज नॉट अ गुड थिंग। तो इसमें गलत आपके फिल्टर लग जाएंगे। अगर लास्ट कैरेक्टर भी C है या स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड कैरेक्टर C है तो उस पर भी वो फिल्टर लगा देगा, विच इज रॉन्ग। यहाँ पे डिडक्टिव का नाम आ जाएगा, यहाँ पे डिडक्टिव का एड्रेस जो कि नॉट रेलिवेंट कंपलसरी नहीं है तो उसको क्रॉस मार्क कर दिया। ईयर कम्स द ग्रॉस अमाउंट कि हम कितना पे कर रहे हैं, नॉट इट इज नॉट नेट ऑफ TDS, इट इज विदाउट डिडक्शन ऑफ TDS। हम लोग 80,000 TDS पे अमाउंट पे करे, उस पर 7.5% से TDS डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194A। तो 7.5% इज 6,000। अब देखोगे कि 194A में 7.5% क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो लास्ट ईयर है तो गवर्नमेंट ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया था कि 25% रिलैक्सेशन दिया था कि अगर 10% रेट है तो आपको 7.5% ही डिडक्ट करना है, अगर 5% है तो आपको 3.75 डिडक्ट करना है, एंड सो ऑन। तो इसके लिए यहाँ पे 7.5% से है। एंड देन दिस इज द एक्चुअल TDS कि हमने कितना डिडक्ट किया है। दिस इज द डेट ऑफ अमाउंट पेड क्रेडिटेड कि हमने कौन से डेट को पेमेंट किया है। ओके, तो जो डेट को पेमेंट कर रहे हैं
उसके अब ये 6 फेब को किया है, तो इसका नेक्स्ट मंथ 7 मार्च तक हम लोग को इतना डिपॉजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास. ओके, so this is the total TDS deposited, and this is the date of deduction. We have with this date of amount to be on safer side to avoid late deduction interest जो कि 1% है. तो अगर इसको हमने सेम रखा अलग रखते तो इसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि आप सबको पता है कि 30% डिसअलाउ हो जाएगा अगर ये सेम फाइनेंशियल में डिडक्ट नहीं किया तो, या तो फिर इसके प्रोसिक्यूशन इंटरेस्ट भी है, फिर इसको आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा 3CD में, तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस है. सो टू अवॉइड दैट वी हैव केप्ट इट सेम. तो जो भी अगर लेट डिडक्शन भी है तो वी हैव टू पे लेट डिपॉजिट इंटरेस्ट, हम डिपॉजिट करके 1.5% से पे करवाएंगे. एंड दिस इज फॉर रीजन फॉर नॉन डिडक्शन या लोअर डिडक्शन. बहुत सारे डिडक्टिव असेसिस को सर्टिफिकेट मिला रहता है गवर्नमेंट को. कुछ अगर स्पेशल केस है तो उसमें जैसे कि दिस ए सर्टिफिकेट, तो ए मीन्स द लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट. अगर किसी के पास है तो उसका हम लोग को अगर नॉर्मल रेट 10% है तो वो सर्टिफिकेट में जो भी रेट मेंशन है वो रेट पे अगर डिडक्ट करेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है, अगर हमने उसका कम रेट पे डिडक्शन किया है तो उसका हम लोग को यहाँ पे प्रूफ देना पड़ता है कि ए करके शो करना पड़ेगा उसका सर्टिफिकेट नंबर. अभी आप देखोगे कि मैंने इधर ए जैसे कि सिलेक्ट किया, ये दोनों रेड हो गए क्योंकि मैंने सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दिया नहीं. अगर सपोज मैंने सर्टिफिकेट नंबर सपोज कुछ भी ऐसा लिख देता हूँ तो ये प्रॉपर है. ठीक है, तो ये आप क्रॉस चेक डाल सकते हो कि अगर यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट किया है और यहाँ पे ब्लैंक है तो इट शुड हाईलाइट बोथ विथ रेड कलर या जो भी आपको कलर ठीक लगे. And not going into this 194N. तो ये जो एक्चुअल पार्ट है, जो TDS रिटर्न का जो एक्चुअल पार्ट है वो है. एंड दिस इज फ्रॉम AW कॉलम इज व्हाट द क्रॉस चेक स्टार्ट, डेटा एनालिसिस पार्ट स्टार्ट. यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा इंटरेस्ट का सेक्शन है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. यहाँ पे अदर क्रॉस चेक्स है, TDS रेट चेक हो गया, लॉजिकल क्रॉस चेक्स, डिडक्टिव कोड चेक, इसका मैंने आपको बताया था. और एक ये वाला चेक है वेदर डेट ऑफ पेमेंट या क्रेडिट फॉल्स विद इन द क्वार्टर. अगर आप 4th क्वार्टर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें ये सब जो इधर डेट है, डेट यहाँ पे डेट ऑफ अमाउंट पेड क्रेडिटेड, ये सब 4th क्वार्टर की होनी चाहिए फ्रॉम 1st जनवरी टू 31st मार्च. अगर कुछ अलग डेट्स है तो वो उधर हाईलाइट कर देगा ये गलत है भाई, ये क्वार्टर में फॉल नहीं हो रहा है. तो लेट मी शो यू वन बाय वन क्रॉस चेक. लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट पेन. इसमें आप देखोगे कि मैंने मिड से 4th कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया है पैन नंबर का, which is important for me to analyze whether this is company, whether it's individual or firm. Okay, so mid से start number is 4 and number of character, मुझे 4th पोजीशन से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो एक कैरेक्टर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है विच इज ओनली द 4th कैरेक्टर. तो यहाँ पे स्टेटस पता चल जाएगा कि मेरे पास कंपनीज की डिडक्टिव है, फॉर्म के HUF है, इंडिविजुअल्स एंड ट्रस्ट भी है. एंड दिस इज द 5th कैरेक्टर ऑफ पैन. बेसिकली व्हाट डज द 5th कैरेक्टर रिप्रेजेंट इन पैन इज, अगर कंपनी या कोई फर्म है तो उसका कंपनी का फर्स्ट अल्फाबेट जो है विच विल बी द 5th कैरेक्टर ऑफ योर पैन. अगर इन केस ऑफ इंडिविजुअल आपके सरनेम का फर्स्ट लेटर रहेगा. फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा नाम विवेक गुप्ता है तो माय पैन 5th अल्फाबेट विल बी जी फॉर गुप्ता. तो इसके लिए हमने 5th कैरेक्टर भी एक्सट्रैक्ट किया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. और यहाँ पे एक क्रॉस चेक डाला है छोटा सा कि अगर यहाँ पे जो डिडक्टिव के नाम है, अब जैसे कि मीता नरसारिया नाम है तो इसका पैन का 4th लेटर इट इज P. दिस शोज दैट दिस पर्सन इज इंडिविजुअल. तो इंडिविजुअल के केस में 5th अल्फाबेट शुड बी सरनेम का फर्स्ट लेटर, तो इसका सरनेम इज नरसरिया. तो इसका मैंने फॉर्मूला से ये वर्ड एक्सट्रैक्ट किया है कि इसका N आ जाना चाहिए. अगर ये N और ये N अगर सेम है तो इट इज ओके, एब्सोल्युटली फाइन. अगर डिफरेंस है तो फिर हम लोग को क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि क्यों डिफरेंट आ रहा है, कुछ गलत तो पेन नहीं डाला है. तो उसका एक
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, इसको मैं अभी अब अगर समझाने पूरा जाऊंगा तो मेरे को इसमें हाफ एन आवर कम से कम लग जाएगा। तो मैं आपको इसको इवेलुएट करके मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली क्या करता है। फॉर्मूला टैब, इवेलुएट फॉर्मूला। इसमें आप देखोगे कि मैं इसमें जो लॉजिक लगा है कि इसमें जो भी स्पेस आ रहे हैं नाम में, it will substitute each space with 50 spaces. So for that you can see it will first evaluate this p, अगर p है, blank नहीं है तो it will evaluate the formula। इसमें अब ये नाम आ गया तो substitute ये नाम में space जो भी है it will replace with 50 spaces। अब देखोगे कि मीता के नाम के बीच में 50 स्पेस आ गए। एंड देन फ्रॉम राइट वी हैव एक्सट्रैक्टेड 50 कैरेक्टर्स, ताकि मुझे क्योंकि खाली सरनेम चाहिए, खाली लास्ट वर्ड चाहिए, तो इसके लिए यूज राइट फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट 50 कैरेक्टर्स फ्रॉम राइट, तो विच विल एलिमिनेट द फर्स्ट वर्ड। सो अभी खाली मेरे पास नर्सरिया एंड द रिमेनिंग 93 स्पेसेस बचे हैं मेरे पास, तो उसको आई विल ट्रिम इट टू एलिमिनेट द एक्स्ट्रा स्पेसेस। तो अभी मेरे पास लास्ट वर्ड आ गया है एंड फ्रॉम इट I want to extract the first character. So from left, I am extracting the first character, which is n. So if it is individual, starting मैंने condition डाला है, अगर p है तो मुझे left से first character चाहिए, तो n आ जाएगा। Okay. So in this way I have done. अगर वो individual नहीं है तो सीधे से वो first word का first character लाके दे देगा। So this is the formula. तो आप इसको जब आपके पास फाइल आई विल शेयर आफ्टर द सेशन, तो उसमें आप इवेल्युएट कर सकते हो कि कैसे ये क्या फॉर्मूला एक्चुअली में क्या कर रहा है, इसका मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया। तो ऐसे आप खुद के फंक्शंस आप डेवलप कर पाओगे। एंड दिस इज द पैन वेरिफिकेशन पार्ट, जो बेसिक हम पैन का जो वेरीफाई कर सकते हैं कि पैन का जो स्ट्रक्चर है कि फर्स्ट 5 अल्फाबेट्स होने चाहिए, या एक पेन के सामने मल्टीपल डिडक्टिव्स नहीं आनी चाहिए, या एक डिडक्टिव के सामने मल्टीपल पेन नहीं दिखना चाहिए, या इसमें एक और मैंने क्रॉस चेक डाला है कि टीडीएस डिडक्टेड अंडर नंबर ऑफ सेक्शन। तो नॉर्मली ऐसा है कि आप एक जन को पेमेंट एक ही सेक्शन के अंडर करोगे, तो अगर मल्टीपल सेक्शन में अगर आ रहा है तो वो चेक कर ले कि सही है ना, कि एक को हम 194 ए में भी पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी पेमेंट दे रहे हैं और रेंट भी पेमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या सही है ना। तो उसके लिए क्रॉस चेक डाला है कि नॉर्मली ये केस नहीं रहता है, बट अगर कभी कोई क्लाइंट में आ गया, कोई बड़े क्लाइंट में, तो आप इसमें देख सकते हो। तो इसमें हमको पेन पहले यूनिक पेन वहाँ पे पेस्ट करने पड़ेंगे। तो आई विल कॉपी इट फ्रॉम हियर, आई विल गो टू हियर, इसमें पेस्ट यूनिक पेन, आई विल पेस्ट वैल्यू यूनिक पेन। ओके, अभी मुझे यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड पेन हो सकते हैं। तो आई विल गो टू डेटा टैब, रिमूव डुप्लीकेट्स कमांड। इसमें पूछ रहा है कि आपको जो आपने सिलेक्ट किया है उसी में आपको सिलेक्शन में रन करना है कि एक्सपांड करना है। तो आई वो कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट्स, माय डेटा डोंट हैज हेडर्स, पेस्ट यूनिक पेन, ओके। तो इसमें आप देखोगे 353 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, 128 यूनिक वैल्यूज रिमेन, ओके। तो इसमें अभी हर एक पेन के सामने वो नाम लेके आ जाएगा वीलुकअप से, वहां से कि वीलुकअप थर्ड कॉलम में जो भी नाम है वो दे दे, और यहाँ पे लेंथ चेक भी करेगा कि अगर लेंथ 10 है so it will run the VLOOKUP function, else it will give the error message, check the length of the pen। तो एक स्मॉल में if condition लेंथ पेन का 10 है तो वो VLOOKUP से नाम लिखे आ जाएगा, otherwise it will give the check the length of the pen error। and this is the count of pen, कि वो रेंज में डी कॉलम में मेरे ये वाला पेन कितनी बार आ रहा है। तो दिस इज सिंपल काउंटिव फंक्शन कि ये दोनों मैच होने चाहिए, कि अगर काउंट पेन अगर 3 बार आ रहा है तो उसके सामने डिडक्टिव का नाम भी 3 ही बार आना चाहिए। अगर डिडक्टिव का नाम सपोज 5 बार आ रहा है तो मतलब डिडक्टिव ज़्यादा क्यों आ रहा है कि एक पेन के सामने मल्टीपल नाम तो नहीं है, या तो अगर पेन का काउंट ज़्यादा आ रहा है
तो एक डिडक्टी के सामने मल्टीपल पेन तो नहीं दिए, तो वो हम चेक कर सकते हैं। दिस इज द काउंट ऑफ यूनिक पेन अगेंस्ट द नेम ऑफ डिडक्टी। एक डिडक्टी के सामने एक ही यूनिक पेन आना चाहिए। एक डिडक्टी के सामने अगर दो दो पेन लिखा है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो आप इसमें से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अभी तो आई थिंक सब वन है। इसमें TDS डिडक्टेड नंबर ऑफ सेक्शंस, जैसे मैंने बोला था कि नॉर्मली 1 होना चाहिए, अगर 2 है तो आप 2 पे फिल्टर लगा के चेक कर सकते हो कि 2 है, कौन सा पेन है ये वाला 5717H। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड आई विल फिल्टर टू एक्चुअली वेरीफाई कि वेदर सच में इसमें 2 सेक्शन में डिडक्ट हुआ है क्या TDS। यस, 194A में भी डिडक्ट हुआ है TDS एंड 194J में भी। इसको हम इंटरेस्ट का भी पेमेंट कर रहे हैं और प्रोफेशनल फीस का भी कर रहे हैं। ओके, तो ये सही है। और फिर हम क्लाइंट से वेरीफाई कर सकते हैं जो उसने डेटा दिया है कि एक्चुअली में सही है क्या नहीं। और फिर इसका मैं आपको बता देता हूँ एक, कि जैसे कि समझो ये मीता नर्सारिया, मैं यहाँ पे इसको समझो, यहाँ पे मैं इसको रिपीट करता हूँ। अब ये मीता के सामने 2 पेन आ रहे, दोनों यूनिक पेन है, तो ये गड़बड़ वाला काम है। तो ये क्रॉस चेक हम लोग का पकड़ रहा है कि नहीं। यस, कि ये मीता का नाम टोटल 4 बार आ रहा है और उसके सामने पेन का काउंट सिर्फ 3 बार आ रहा है। तो एक वो है, वो दूसरा पेन है, इसके लिए इधर 3 ही पेन आ रहे हैं, एक वो ये पेन का काउंट आ रहा है। तो ये 4 बार नाम आ रहा है और पेन का काउंट एक ही बार आ रहा है। तो ये 2 पेन दिखाए गए बेसिकली मीता के नाम के सामने। तो ये आप ये वेरीफाई आपका हाईलाइट हो जाएगा क्रॉस चेक। तो ये सब बेसिक क्रॉस चेक्स है पेन रिलेटेड। जो भी TDS रिटर्न में जो भी पॉसिबल क्रॉस चेक्स हो सब मैंने यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो। लेट मी अनडू दिस। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। यहाँ पे अगर आपके कुछ कमेंट्स है तो वो आप दे सकते हो। अगर कुछ आपको लगे कि ओके है तो आप ओके यहाँ पे लिख सकते हो, ओके वेरीफाइड। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू डिडक्टिव क्रॉस चेक। इसमें भी मैंने सेम एक इफ कंडीशन डाला है कि इफ अगर 4th कैरेक्टर ऑफ पेन यहाँ पे C है तो कंपनी आना चाहिए वरना अदर्स आना चाहिए। एंड दिस विल मैच विथ द C3 सेल, तो वहाँ पे जो मेंशन किया है कंपनी और अदर्स, तो वो अगर उसके साथ मैच हो रहा है तो यहाँ पे ट्रू देगा, अदरवाइज इट विल गिव फॉल्स। तो इसको भी मैं आपको इवेल्युएट करके बता देता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझेगा इवेल्युएट फॉर्मूला। तो पहले तो देखिएगा कि C3 में कुछ है क्या नहीं। अगर C3 ब्लैंक है तो इट विल गिव ब्लैंक आउटपुट। ओके, C3 में कुछ है तो इफ फॉल्स इट विल रन द फॉर्मूला। अगर इसमें AX3 में अगर P है, ये P है 4th कैरेक्टर, so this is not equals to company, so it is false, so value is false, then यहाँ पे others आना चाहिए। एंड यहाँ पे others और C3 में जो लिखा है, C3 में others is exactly same, so I have compared them with the exact function, तो ये ट्रू आ रहा है। तो अगर वहाँ पे मैं कंपनी कर देता हूँ तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा एंड विल गेट हाईलाइटेड यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये आपको याद रखना है कि एग्जैक्ट फंक्शन अगर आप यूज कर रहे हो तो यार आउटपुट शुड बी बोथ इन सेम केस, क्योंकि केस सेंसिटिव फंक्शन है। अगर केस का थोड़ा सा भी फर्क रहा तो ये गलत देगा। अगर सपोज इधर आपने छोटा ओ लिख दिया तो ये देखो फॉल्स देगा, क्योंकि वहाँ पे वो कैपिटल ओ है और यहाँ पे स्मॉल ओ है, तो इट विल गिव फॉल्स। तो वो आपको ध्यान रखना है। दिस इज द लॉजिकल क्रॉस चेक्स जो बेसिकली हम फिल्टर लगा के देखते हैं। सपोज कि ये सेक्शन है 194A, तो 194A में आप फिल्टर लगा के देखोगे कि सब अदर्स है ना। अगर कंपनीज है तो कंपनी और अदर्स का 10% ही है रेट, तो सही है ना, 7.5%। और इसमें अदर्स का ये सेम रेट में, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इसमें फिर आप नेक्स्ट अगर फिल्टर लगाओगे 194C सेक्शन में, तब C सेक्शन में देखोगे कि कंपनी का जो है वो 2% पे डिडक्ट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर में, तो उसका 75% 1.5 से डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। एंड अदर्स के केस में 1%, तो सबका 1% है करेक्ट।
और ये 75% जो प्रोविजन चेंज किया था ये लॉकडाउन में। तो अगर ज़्यादा डिडक्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कम नहीं होना चाहिए रेट। तो जो एक्चुअल जो स्पेसिफाइड है उससे आप ज़्यादा अगर डिडक्ट कर रहे हो तो उतना आप डिपॉजिट कर दोगे पूरा, तो गवर्नमेंट को कोई तकलीफ नहीं है, उतना वो क्रेडिट पास ऑन कर देगी एसएससी को फ्रॉम द फॉर्म 26 ईयर्स। तो ये सब आप फिल्टर लगा के एक एक देखोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क, आई नो दैट, कि इसमें आपको एक एक फिल्टर लगा के चेक करना है कि 194H में भी आप फिल्टर लगाओगे तो 194H में सब 3.75% करेक्ट है, ठीक है, और सबका अदर्स है। एंड देन यू विल फिल्टर 194I में। आई में क्या है आप चेक करोगे कि आई में सब सेक्शन बी है 7.5%, क्योंकि 10 का 75% 7.5% ही डिडक्ट हुआ है, करेक्ट है। तो अगर ये समझो कम से डिडक्ट हुआ होता तो इधर वो एरर आ जाता, कहीं ना कहीं ये एरर पकड़ लेगा इधर केस में आपने कम से डिडक्ट किया और ज़्यादा भर है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि डिफरेंस वो येलो में आ गया, क्योंकि इधर आप ज़्यादा दिखा रहे हो अमाउंट। अगर ये सपोज यही अगर 9% होता तो इसमें भी सेम रेट आ जाता और इधर शॉर्ट आ जाता कि 9% से होना चाहिए था, बट आपने कम डिडक्ट किया, टीडीएस अमाउंट कम आ रहा है यहाँ पे। तो एक क्रॉस चेक आप ऐसे डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्रॉस चेक जो मैंने बनाया लॉजिकल क्रॉस चेक, इसका फॉर्मूला बहुत थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, पर बहुत ही सिंपल फंक्शन है। मैंने नेस्टेड इफ यूज़ किया है फॉर ईच सेक्शन। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मैंने ये चेक किया कि अगर ए कॉलम में कुछ नहीं है तो मुझे आउटपुट ब्लैंक चाहिए। अगर यहाँ पे सेकंड इफ, अगर यहाँ पे मैंने एंड कंडीशन यूज़ किया है, तो बेसिकली मैं जो भी कंडीशंस चेक कर रहा हूँ ये पूरे, ये अगर सब ट्रू रहेंगे तो इट विल गिव मी फॉल्स। अगर एक भी फॉल्स है तो इट विल गो ऑन टू नेक्स्ट कंडीशन। जैसे कि 194C वाला मैंने कंडीशन चेक किया, अगर सेक्शन में 194C है और अगर पेन जो कि AX कॉलम में है अगर वो इंडिविजुअल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन, दिस इज नॉट इक्वल टू P और नॉट इक्वल टू H, इंडिविजुअल HF नहीं है, तो इसमें ये सब होना चाहिए कि X कॉलम ब्लैंक होना चाहिए और O और W सेम होना चाहिए, तो ये ट्रू दिखाएगा। अगर 194C है और इसमें और कि इंडिविजुअल और HF है तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर 194C है, इंडिविजुअल HF नहीं है और लोअर सर्टिफिकेट है तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो ऐसे हर एक सेक्शन के लिए मैंने आप ये दिया 194A है, IB है और J है, तो उसका ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो ऐसे आप हर एक सेक्शन का दे सकते हो। इधर मैंने ट्रांसपोर्टर का भी दिया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसपोर्टर है तो उसमें अगर टी मेंशन करना कंपलसरी है, तो 194C में अगर ट्रांसपोर्टर है तो उसके सामने रेट 0 होना चाहिए, P कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, W ब्लैंक होना चाहिए। तो अगर ये सब कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इट विल शो मी ट्रू। फिर अगर ये लास्ट कंडीशन 194JB का, अगर सॉफ्टवेयर वाला कोई बंदा है प्रोफेशनल सर्विसेज तो उसका 0% है होना चाहिए और SC होना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इट विल गिव मी ट्रू। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो एट लास्ट इट विल गिव मी फॉल्स। तो फॉर एग्जांपल अभी एक बार चेक करते हैं, समझो 194 इधर, मैं इसको A कर देता हूँ तो A में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा वो, क्योंकि दोनों में रेट 10% ही है। लेट मी चेंज, वेट अ मिनट, समझो एक जगह पे अगर मैं C कर देता हूँ तो इसमें वो कम डिडक्ट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि C में 2% डिडक्ट करना रहता है, तो हमने कम ही डिडक्ट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप वो सब क्रॉस चेक ऐसे डाल सकते हो। तो ये मैंने जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दिया है, ऐसे आप अपने खुद के फॉर्मूले खुद के कंडीशंस डाल के बना सकते हो फंक्शंस। दिस इज द नेस्टेड यूज ऑफ इफ फंक्शन, कि आप कैसे फंक्शंस को यूज कर सकते हो। दिस इज TDS रेट चेक, सिंपली द अमाउंट इनटू रेट माइनस TDS अमाउंट शुड गिव मी 0। अगर 10,000 मैंने इसको अमाउंट पे किया, उस पर 10% का रेट है, तो 10,000 इंटू 10%, 1000 शुड बी द TDS, तो माइनस TDS अमाउंट।
तो 10,000 into 10% is 1,000, 1,000 minus 1,000 should come 0. तो अगर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है तो दिक्कत देगा, ठीक है। समझो यहाँ पे 10 रुपए का डिफरेंस है तो ये लाल शो करेगा। -1 to 1 तक का डिफरेंस है तो इट विल शो मी इन येलो कलर, एंड अबाव अगर 1 से ज्यादा का डिफरेंस है तो इट विल शो इन रेड कलर। यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट विद इन द क्वार्टर है कि नहीं, तो यहाँ पे हम देखो ये क्वार्टर स्टार्ट डेट एंड क्वार्टर एंड डेट मैंने मेंशन किया है, तो अगर ये इसके बीच में आता है तो इट विल शो मी ट्रू, अदरवाइज इट विल गिव मी फॉल्स। यहाँ पे आप देखो कि O4 में जो मैंने डेट मेंशन किया है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1st January 2021 and it should be less than equal 31st March 2021. If these both conditions are true, it will show me true, otherwise it will give me false. Okay, now coming to the most important interest calculation part. Let me delete this. Okay, so first is date on which tax deducted. तो कौन से डेट को डिडक्ट किया है, तो आई विल लिंक इट विथ डेट ऑफ डिडक्शन, ताकि यहाँ पे मुझे जो भी इंटरेस्ट से रिलेवेंट जो भी है वो सब यहाँ पे आ जाए, ठीक है। देन इज ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ TDS। तो इसमें अगर देखोगे कि 31st जनवरी को अगर किया है तो ये 7th February तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए, तो ये ड्यू डेट यहाँ पे 7th Feb आ जाना चाहिए। ये 6th Feb है तो 7th March आना चाहिए, और फॉर द केसेस ऑफ मार्च 30th April आना चाहिए, क्योंकि मार्च के लिए 30th April इज द ड्यू डेट, एंड फॉर अदर मंथ्स फॉलोइंग मंथ 7th इज द ड्यू डेट। तो वो हम फॉर्मूला से कैसे निकाल सकते हैं ड्यू डेट, तो इसके लिए वी विल यूज EO मंथ फंक्शन। इट रिटर्न्स द सीरियल नंबर ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ बिफोर और आफ्टर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मंथ। बेसिकली तो फुल फॉर्म है एंड ऑफ मंथ, हम जो भी मंथ स्पेसिफाई करेंगे उसका लास्ट डेट हमें लाके देगा। तो भी जैसे कि स्टार्ट डेट इज 31st Jan, and if I write here 1, it will give me next month last date which is 28th Feb. ओके, अगर मैं यहाँ पे मैं 2 मेंशन करता हूँ तो मुझे 2 महीने के बाद का जो भी लास्ट डेट है 31st March वो लाके देगा। तो भले ही वो 31st होने दो 30th होने दो, इट विल टेक केयर ऑफ इट। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो 30th April लाके देगा। तो अगर मुझे करंट मंथ का चाहिए लास्ट डेट, तो आई विल राइट हियर 0 कि मुझे जो भी डेट है इसके करंट मंथ का लास्ट डेट चाहिए। तो आप देखोगे सब में लास्ट डेट आ गया, ये फेब है तो करंट मंथ का लास्ट डेट 28 Feb, यहाँ पे 31st March। तो नाउ सिंपली फॉर ड्यू डेट आई हैव टू ऐड 7 to it कि डेट जो भी है लास्ट डेट ऑफ द मंथ, लास्ट डेट ऑफ द करंट मंथ प्लस 7 days, तो 7th of the following month का डेट आ जाएगा, ठीक है। बट इसमें आप देखोगे कि जैन और फेब के लिए तो करेक्ट आ रहा है, फेब और मार्च, बट यहाँ पे मार्च के केस में भी वो 7th April पकड़ रहा है। तो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला में मॉडिफाई करना पड़ेगा कि फॉर द केसेस ऑफ मार्च आई हैव टू राइट, यहाँ पे 30th आना चाहिए, 30th April, तो डेट खाली मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला मॉडिफाई, ये पार्ट मुझे मॉडिफाई करना है कि मुझे यहाँ पे मार्च के महीने में 30 ऐड करना है, and for other months I have to add 7. So instead of 7 I will write here if formula, if the month of this date equals to 3, तो अगर मार्च है तो वैल्यू इफ ट्रू I should add 30 and value if false I should get 7, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करोगे, अब देखोगे कि 30th April आ गया, कि मार्च के केस में 30th April and for other months it is 7th of the following month. Now here comes the actual date of deposit of TDS. Now this one is important कि actual date कब deposit किया। भाई आपने ये डिडक्टी का जो चालान भरा है, तो पहले तो कौन सा चालान भरा है हमने, इसका 11th नंबर चालान भरा है, तो हम 11th में जाएंगे और 11th में जाके देखेंगे कि इसका डिपॉजिट कब किया है, 5th Feb को किया है, और इसका डिडक्शन कब हुआ है,
इसका डिडक्शन हुआ है 31 जनवरी को, तो इधर इंटरेस्ट अप्लीकेबल नहीं है। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट फेच करना है, ताकि हम कंपेयर कर सके कि ड्यू डेट से कंपेयर कर सके ड्यू डेट के बाद पे किया है कि ड्यू डेट के पहले पेमेंट हुआ है। तो फॉर दैट वी विल यूज सिंपल वी लुकअप फंक्शन कि वी लुकअप फ्रॉम द चालान नंबर जो हमने मैपिंग के लिए बनाया है यहाँ पे लुकअप वैल्यू। तो इसमें फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू कि मुझे इसको देखना है 11 को। सेकेंड आर्गुमेंट इज टेबल एरे कि टेबल एरे मुझे चालान शीट में देखना है कि मुझे यहाँ पे पूरा देखना है चालान डिपॉजिट। तो यहाँ पे आप देखोगे 12th कॉलम, चालान डिपॉजिट इज द 12th कॉलम ऑफ माइन। मैं पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ A12, तो L is my 12th column. कॉलम इंडेक्स नंबर विल बी माई 12 कि मुझे टेबल से 12th कॉलम का आउटपुट चाहिए, एंड रेंज लुकअप विल बी द एग्जैक्ट मैच फॉल्स। तो यहाँ पे डेट आ जाएगा कि इसका एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट 5th Feb है। ठीक है, तो एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट आ गया। अब इसमें देखो ये केस में आपका नहीं, ठीक है, ये भी बराबर है। सो वेदर इंटरेस्ट एप्लीकेबल, तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल कब होगा कि ड्यू डेट के बाद अगर आपने डिपॉजिट किया है तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे सिंपली आई विल यूज इफ फंक्शन, इफ दिस डेट is greater than this date, so it should give me yes, interest is applicable, otherwise no. अभी समझो कि ये 7th मार्च है, इसको मैं अप्रैल में डिपॉजिट करता हूँ, मैं मैन्युअली चेंज कर देता हूँ 6th अप्रैल। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ड्यू डेट है 7th मार्च और मैंने डिपॉजिट किया है 6 अप्रैल को। इट विल शो अस यस। आई विल अनडू इट। तो नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ डिले, नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। इसमें बहुत सेक्शन में जो लिखा है, सेक्शन में एक्चुअली ये लिखा है कि जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो नंबर ऑफ मंथ्स, तो आपको फ्रॉम डेट ऑफ डिडक्शन, डेट ऑन विच टैक्स डिडक्टेड, टिल एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, तो उसमें जो भी मंथ्स आ रहा है आपको कंसीडर करना है। एंड एक और थिंग सेक्शन में स्पेसिफाई किया है कि पार्ट ऑफ द मंथ शुड बी कंसीडर एज फुल मंथ। तो इसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसमें डील करते हैं। सो फॉर नाउ what we do, I will show you that। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 31 जनवरी देखेंगे, 31 जनवरी फॉल्स इन जनवरी मंथ, तो जनवरी मंथ पूरा काउंट होगा। एंड अगर डिपॉजिट अगर लेट किया है, सपोज ये 7th मार्च को किया है, ओके, तो डिपॉजिट मार्च महीने में किया है, तो जनवरी का पूरा महीना, फेब्रुवरी का पूरा महीना एंड मार्च का पूरा महीना, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पूरा लगेगा। यहाँ पे एक दिन की वजह से पूरा मंथ कंसीडर होगा, यहाँ पे फेब मंथ पूरा कंसीडर होगा ही क्योंकि हमने डिपॉजिट मार्च में किया है। यहाँ पे मार्च महीने में भी 7 दिन हमने लेट भरा है, तो पार्ट ऑफ द मंथ कंसीडर फुल मंथ। तो ये तीनों महीने कंसीडर हो गए, तो यहाँ पे बेसिकली 3 आना चाहिए। तो मैं अनडू कर देता हूँ फिलहाल, ताकि मेरा वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाए। तो नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ डिले, बहुत लोग क्या करते हैं, ये डिफरेंस निकालते हैं दोनों डेट का एंड डिवाइडेड बाय 30 एंड उसको राउंड अप कर देते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ डिले निकालेंगे, तो इसके लिए आप डेट डिफ फंक्शन आप यूज कर सकते हो। डेट डिफरेंस आप टाइप करोगे डेट डिफ, तो यू विल सी डेट डिफ करके यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, या एक्चुअली यहाँ पे एक्सेल में डेट डिफ करके फंक्शन एग्जिस्ट करता है, बट वो आपको ये लिस्ट में दिखेगा नहीं। इट इज द सीक्रेट फंक्शन, हिडन फंक्शन। तो आप डेट डिफ आपको ऐसा का ऐसा टाइप करना पड़ेगा, डेट डिफ। इसमें आप देखोगे कि इसमें आर्गुमेंट्स आपको नहीं दिख रहे, बट फंक्शन का नाम आपको दिख रहा है। तो डेट डिफरेंस में फर्स्ट आर्गुमेंट इज स्टार्ट डेट, आपको याद होनी चाहिए आर्गुमेंट, 3 आर्गुमेंट्स है इसमें। फर्स्ट आर्गुमेंट इज स्टार्ट डेट, सेकेंड आर्गुमेंट इज एंड डेट, एंड थर्ड आर्गुमेंट इज आपको डिफरेंस किस में चाहिए, मंथ्स में चाहिए, ईयर्स में चाहिए, डेज में चाहिए। तो आई वांट द डिफरेंस इन मंथ्स, so it should be in double quotes। ओके, तो नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ डिले कुछ नहीं है,
इसमें आप देखोगे कि 1 महीने का डिले दिख रहा है, जबकि 1 महीने का डिले नहीं है, टाइम पे डिपॉजिट किया है। बट ये डेट डिफ फंक्शन क्या करता है, ये सिर्फ कंप्लीटेड मंथ्स काउंट करेगा आपका। कंप्लीटेड मंथ्स अभी देखे तो 6 फेब से 6 मार्च 1 महीना पूरा हो गया, तो इट विल गिव यू 1। अगर आप यहाँ पे 6 मार्च की जगह पे सपोज 1 मार्च आप मेंशन करोगे तो इट विल गिव यू 0। अगर आप 8 अप्रैल मेंशन करोगे तो इट विल गिव यू 2, बिकॉज 2 महीना पूरा कंसिडर हो चुका है, फुल मंथ। ये सिर्फ फुल मंथ आपको लाके देगा कि 6 फेब से 6 मार्च इज 1 मंथ एंड 6 अप्रैल इज 2 मंथ्स। तो लास्ट के 2 डेज को इग्नोर करेगा क्योंकि इट इज नॉट अ कंप्लीटेड मंथ। अगर यहाँ पे सपोज मैं 28 अप्रैल भी लिखता हूँ तो इट विल गिव मी 2। 28 मई कर दूंगा तो इट विल गिव मी 3, बिकॉज 3 इज द कंप्लीटेड मंथ। बट मुझे इसमें ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जो भी मंथ्स यहाँ पे है वो सब कंसिडर होने चाहिए। यहाँ पे जैसे कि फेब से मई तक है, तो फेब मार्च अप्रैल मई, इट शुड गिव मी 4। सो उसके लिए लेट मी फर्स्ट अनडू इट। ओके, तो उसके लिए आई विल यूज सम डिफरेंट फंक्शंस। तो मैं क्या करूँगा कि अपना जो ईयर का डिफरेंस है, ईयर का डिफरेंस निकालूंगा। आई विल मल्टीप्लाई द डिफरेंस विथ 12 to convert it into months and then add the month difference. Okay, year का difference multiply by 12 plus month का difference, so it will give me the total difference in months. तो वो कैसे करेंगे, year of this minus year of this, the whole thing multiply by 12, so I will put it into bracket. The difference of years multiply by 12 to convert it into months plus month का difference, month of this month minus month of this month. इसमें आप देखो कि 1 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 2, 31 जैन और 7 फेब। So I will add 1 to it. अब इसमें नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ डिले बोल रहे हैं, पर एक्चुअली डिले नहीं है, तो इधर बेसिकली 0 आना चाहिए मुझे। तो मैं स्टार्टिंग में कंडीशन डाल दूँ यहाँ पे, लेट मी डू इट लेफ्ट अलाइन सो यू कैन सी द लिंक्स। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आई विल पुट द कंडीशन इफ दिस इज इक्वल, सॉरी, if this is equals to yes, then only analyze the formula, otherwise give me 0. ओके, तो जहाँ पे वो डिले होगा फिर वहाँ पे वो मंथ कैलकुलेट करेगा। तो मैं पूरे को नीचे ड्रैग कर देता हूँ यहाँ तक, यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ डिले आ गया। यहाँ पे इंटरेस्ट सिंपल TDS अमाउंट विच इज दिस वन मल्टीप्लाई बाय 1.5% rate of interest per month into number of months, this one. ओके, इसमें मैं इसको 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर देता हूँ, राउंड अप टू 2 डेसिमल्स। So I will copy it down. ठीक है, तो ये मेरा पूरा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऐसा आप कर सकते हो। इसमें मैंने डायरेक्टली पहले लिंक किया, देन ड्यू डेट निकाला कि अगर ये डेट को पेमेंट हुआ है तो उसका डिडक्शन भी ये डेट को हुआ है, तो उसका डिपॉजिट नेक्स्ट मंथ के 7th तक हो जाना चाहिए, एंड इन केस ऑफ मार्च 30th अप्रैल तक हो जाना चाहिए। एंड देन एक्चुअली कब डिपॉजिट हुआ है, then whether interest is applicable, if the difference is greater than 0 तो interest applicable, otherwise no. number of months of delay, अगर interest applicable है तो कितना delay हुआ है months में, and then the interest amount from 1.5% per month. So this is all about the interest calculation. आप देखोगे यहाँ पे
इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे आया नहीं, आई थिंक बी क्यू कॉलम, ओके D2 से लिंक्ड है, इसमें मुझे A2 से लिंक करना चाहिए बिकॉज माई चालान इज इन A2, so I will copy it down. ओके तो अब देखोगे यहाँ पे इंटरेस्ट के टोटल फिगर आ गए, ये चालान में मैंने टोटल 63 इंटरेस्ट भरा है और यहाँ पे गवर्नमेंट को 65 दे, तो 2 रुपया ज़्यादा दिया, तो यहाँ पे येलो कलर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, कहीं पे भी रेड कलर नहीं है, पॉजिटिव फिगर्स नहीं है डिफरेंस। तो अगर मैं इधर पॉजिटिव कर देता हूँ, सपोज कि इधर 218 शो हो रहा है पर हमने दिया 213 है, तो यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा कि 5 रुपीज हमने शॉर्ट इंटरेस्ट पे किए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टीडीएस रिटर्न्स पार्ट। इसमें अब डिडक्टिव शीट में मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना के रखा है, सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करोगे, सपोज 22-23, तो आप देखोगे कि ये फॉल्स आ गया पूरा, क्योंकि डेट इज नॉट विद इन द क्वार्टर, एंड यहाँ पे आप क्वार्टर फिर सिलेक्ट कर पाओगे, क्वार्टर 1 to 2। तो यहाँ पे जैसे ही मैं समझो Q2 सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डेट जो है Q2 के आ जाएगी। अब देखिए डेट ऑटोमेटिक चेंज हो गया फॉर्मूले से, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, एंड दिस इज ई डेट के 3 months आफ्टर दिस डेट। तो ये ऑटोमेटिक आप कर सकते हो, ये डेटा वैलिडेशन से आप ड्रॉप डाउन बना सकते हो जैसे कि मैंने बताया था। और ड्रॉप डाउन बनाना क्यों कंपलसरी हो जाता है, ताकि अगर आप देखो कि यूजर को अगर आप दोगे फिल करने के लिए, उधर आपने बोला है Q3 डालना है, अगर आप ड्रॉप डाउन नहीं डालते हो, सपोज मैं इधर ड्रॉप डाउन क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, क्लियर ऑल ड्रॉप डाउन, तो उसको अगर क्वार्टर डालने बोलोगे, वो क्वार्टर ऐसा भी डाल सकते हैं तो गलत आ जाएगा। फिर अगर आप वो क्वार्टर ऐसा भी डाल सकते हैं, कैसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपने फॉर्मूला में यहाँ पे लिंक किया है, तो आप चाहते हो कि वो सेम चीज डाले जैसा आप चाहते हो, ताकि आपका फॉर्मूला इफेक्ट ना हो कोई भी। तो इसके लिए आपको ड्रॉप डाउन इधर मेंशन करना अच्छा है कि आप ड्रॉप डाउन दे दो, तो यूजर उसके अलावा कुछ टाइप ही नहीं कर पाएगा। अगर वो अभी QTR3 टाइप करता है तो एरर देगा, द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो इधर बेटर है कि आप Q3 ऐसा सिलेक्ट कर सको। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का ड्रॉप डाउन भी आप सेम तरीके से कॉमा कॉमा करके दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लाइंट का नाम आ जाएगा, उसका पैन और टैन आ जाएगा। आप इसके क्रॉस चेक्स भी डाल सकते हो कि खुद का पैन वहाँ पे रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो। कभी कभी क्या होता है, खुद का पैन दे देता है डिडक्टर, तो टैन नंबर क्या है, एंड बस यहाँ पे जो वी ऑल्सो डू द ओल्ड टास्क वेरिफिकेशन, कि ऑनलाइन हम चालान वेरीफाई कर लेते जो भी क्लाइंट ने भरा है, तो उसका भी हम यहाँ पे लिंक शेयर कर देते कि 21 चालान्स है ये क्वार्टर में, तो आप जाके वेरीफाई कर लो। एंड टीडीएस रेट्स का आप यहाँ पे स्मॉल ऐसा टेबल बना सकते हो, इसका ओरिजिनल रेट 10 है, रिवाइज 7.5, तो आप ये इसको फॉर्मूला में यूज कर पाओगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिडक्टिव शीट एंड चालान शीट। टीडीएस रिटर्न के बारे में, जो कि एक डिडक्टर फाइल करता है। अगर डिडक्टर अगर सही रिटर्न फाइल करेगा अपना और सही टाइम पे डिपॉजिट करेगा, तो सामने वाले को अपने फॉर्म 26 शेयर्स में रिफ्लेक्ट करेगा उसका क्रेडिट, जो कि फिर वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करेगा तो उसका वो क्रेडिट ले पाएगा। और बैलेंस जो भी है वो या तो एडवांस टैक्स में भरा रहेगा, तो बैलेंस वो ऐसे टैक्स में उसको भरना पड़ेगा, तो रिफंड भी आ सकता है। तो अगर क्लाइंट ने कुछ डिडक्टर ने फाइलिंग के वक्त कुछ गलत किया, जैसे कि पैन नंबर कुछ गलत डाल दिया, सेक्शन कुछ गलत डाल दिया, या समझो कम दिखा दिया, या अमाउंट कम डिपॉजिट किया, या इंटरेस्ट नहीं भरा, कुछ भी एक्सवाइजेड रीजन, तो उसके वो फॉर्म 26 में गलत शो करेगा। अगर वो गलत शो करेगा तो उसको क्रेडिट लेने में दिक्कत होगी, फिर उसको रिवाइज रिटर्न करना पड़ेगा, वो सब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर। तो टीडीएस के कंप्लेंसेस आप सबको पता हो गया, अपने रिटर्न फाइल करते हो तो इसके बहुत ज़्यादा कंप्लेंसेस है इसके, इतना आसानी से आप रिवाइज भी नहीं कर पाते, ऑनलाइन आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तो सब BSc BSc चाहिएगा आपको। तो XYZ, तो आप अगर फर्स्ट टाइम में अगर आप सही से रिटर्न फाइल करो तो वेल एंड गुड। तो इसके लिए आपको जो क्रॉस चेक्स है वो सब आप अगर बेसिक वाले क्रॉस चेक भी कर ले तो रिटर्न फाइलिंग से पहले, तो वो सब अच्छा रहेगा ताकि सब सही से हो जाए। ये तो है डिडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
So let me close this file. Now we come to form 26 CS डिडक्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एसएससी है तो उसके फॉर्म 26 CS में वो रिफ्लेक्ट करेगा। जो अगर टीडीएस रिटर्न में अगर सही फाइल किया, उसका पैन नंबर डाला है सही से, तो उसके 26 CS में दिखेगा। अगर 26 CS में दिख रहा है तो क्रेडिट अपने रिटर्न में ले पाएगा। तो भी जैसे कि मैंने फॉर्म 26 CS में आई विल शो यू हाउ टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल टू एक्सेल यूजिंग टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड। तो जो टेक्स्ट फाइल से जब हम इंपोर्ट करेंगे वो एकदम मैस रहता है वो डेटा, तो उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं to make it suitable for further analysis. And then after restructuring, we have to use that data to summarize with pivot table. कि डिडक्टर एंड सेक्शन वाइज मुझे समिफ होके आ जाए, पाइवट बन जाए मेरा, ताकि मैं तो अपने बुक से कंपेयर कर सकूँ सेक्शन वाइज। ओके, सो लेट मी ओपन 26 CS। तो आप देखोगे कि सैंपल 26 CS है। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करोगे इनकम टैक्स वेबसाइट से तो आपको इस तरीके से दिखेगा। तो इसमें पार्ट ए जिसमें कि सब सेक्शन आ जाते हैं नॉर्मली 194A सी HIJ, जो भी अगर आपके डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो भी आपका टीडीएस कट है वो सब पार्ट ए में आ जाएगा इसमें। तो इसमें आप देखोगे बहुत सारे डिडक्टर्स है, ये 1, 2 और सेक्शन भी 194C है। नीचे आप जाओगे तो 194J भी आपको मिलेगा, 194A सेक्शन है। बहुत बड़ा 26 जैसे 194I भी है, IA भी है। इसमें मल्टीपल डिडक्टर से इसका टीडीएस कट किया है मल्टीपल डिडक्टर्स ने। तो ये सबको अभी आप देखोगे कि इसका जो प्रेजेंटेशन है पीडीएफ में, तो इसमें सिर्फ डिडक्टर के सामने डिडक्टर वाइज टोटल आ जाता है कि टोटल अमाउंट पे ये डिडक्टर ने इतना पे किया आपको और उस पर इतना टीडीएस डिडक्ट किया। तो इसमें अगर आपको सेक्शन वाइज समरी बनाना हो तो पीडीएफ में वैसा सेक्शन वाइज समरी कहीं नहीं आता है कि 194C में टोटल कौन से डिडक्टर ने कितना कितना काटा है, या 194A में टोटल कितना मेरा डिडक्ट हुआ है, क्योंकि आपको सेक्शन वाइज क्रेडिट दिखाना पड़ता है। आपके टैली में अगर आपने टीडीएस रिसीवेबल में सेक्शन वाइज अगर मेंटेन किया हो तो आपको सेक्शन वाइज कंपैरिजन चाहिए, तो इसमें वो आपको नहीं मिलेगा। अगर 2 या 3 ही अगर पार्टी होते तो आप मैनुअली चेक कर लेते, बट अगर इतने सारे पार्टी तो आप नहीं चेक कर पाओगे मैनुअली। तो इसके लिए पोर्टल पे टेक्स्ट फाइल भी अवेलेबल रहता है साथ में, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है आपको। इसमें आप देखोगे सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसमें आपका, बट एकदम मैसिव फॉर्म में एकदम आप देखोगे सब है इसमें। स्टेटस, नाम, सेक्शन है, डेट है और अमाउंट भी है सब, हर एक पार्टी का, श्रीजी, पॉलीमर्स, MOX। अब ये डेटा हम लोग एक्सेल में ले जाके इसको कैसे अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हैं लेटेस्ट से। इसको मैं पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा यूजिंग Ctrl+A, देन प्रेस Ctrl+C टू कॉपी। तो मैंने पूरा डेटा कॉपी कर लिया है। नाउ आई विल ओपन अ न्यू फाइल, Ctrl+N टू ओपन अ न्यू फाइल, and I will paste the data in cell A1 of the sheet। अब देखोगे मैंने पूरा डेटा यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पूरा डेटा आ गया, पार्ट ए में जो भी है या जो भी पार्ट सी में उसने एडवांस टैक्स भरा होगा सब डिटेल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये सब एडवांस टैक्स भरा है इसमें, रिफंड की डिटेल्स कुछ है, सेफ्टी ट्रांजेक्शंस तो सब आ जाएगा। बट अभी दिस डेटा, ये डेटा आप देखोगे एकदम ऐसे हम कुछ एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इसमें सिर्फ एक कॉलम में पूरा सब कुछ टेक्स्ट आ गया। तो इसको हम लोग को अच्छे से स्प्लिट करना है अलग अलग कॉलम्स में और उसको अच्छे से रिस्ट्रक्चर करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ताकि हम इसका पाइवट टेबल बना सकें। तो वो हम कैसे करेंगे, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। तो ये आप देख लो, आपके बहुत काम आएगा, ना कि फॉर्म 26 AS में ही, बट अलग अलग जगह पे ये काम में आ सकता है। आप टेक्स्ट फाइल से कुछ जगह डेटा इंपोर्ट करते हो तो द फर्स्ट थिंग यू डू इज टू स्प्लिट इट इनटू मल्टीपल कॉलम्स यूजिंग सम स्पेसिफाइड डिलिमिटर जो भी है टेक्स्ट फाइल में। इसमें आप देखोगे कि हर एक चीज के बाद ये वाला साइन यूज किया है, जिसको हम मैथमेटिक्स में पावर का सिंबल बोलते हैं, रेस टू सिंबल, एक छोटा सा एरो जो है ये। तो इससे हम डेटा स्प्लिट कर सकते हैं कॉलम्स में, कि ये 1 एक कॉलम में आ जाए, 194 दूसरे कॉलम में, ये डेट तीसरे कॉलम में। तो फॉर दैट यू हैव टू सिलेक्ट
this A column because my entire data is in A column. अगर आप देखोगे मेरा पूरा डेटा A column में लास्ट तक, तो आपको A column सिलेक्ट करना है, डेटा टाइप में जाना है, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम्स। ये मुझे टेक्स्ट को कॉलम्स में स्प्लिट करना है, तो इसके लिए मुझे टेक्स्ट टू कॉलम्स यूज करना पड़ेगा। इसमें आप देखोगे कि डिलिमिटेड एक ऑप्शन है कि कैरेक्टर सच एज कॉमास और टैब सेपरेट ईच फील्ड। तो हम लोग के इसमें ये जो कमांड है, ये जो सिंबल है, जो कि आपके बटन 6 पे अवेलेबल रहता है, शिफ्ट 6 करके आप इस पे ला सकते हो, तो इससे आपका डेटा सेपरेट हुआ है। तो आई विल गो विथ नेक्स्ट। इसमें कुछ डिलिमिटर टैब सेमीकोलन कॉमा स्पेस जो फ्रीक्वेंटली रहते हैं, बट इसमें से हमारा कुछ नहीं है, तो वी सिलेक्ट अदर and we will specify our delimiter which is 6 shift 6। तो आप नीचे प्रीव्यू देखोगे कि इधर ऑटोमेटिक इसने लाइन इंसर्ट कर दी है, कि जहाँ पे वो इसको सिंबल दिखता है उसने लाइन इंसर्ट कर दी है। ये लाइन का क्या मतलब है कि इतने कॉलम्स में डेटा को डिवाइड कर देगा, कि जहाँ पे ये सिंबल आ रहा है वहाँ पे वो स्प्लिट कर देगा अपने डेटा को। तो आई विल गो नेक्स्ट, इट इज ओके। यहाँ पे जर्नल मुझे कॉलम डेटा फॉर्मेट ठीक है जर्नल रखना है। डेस्टिनेशन पूछ रहे कहाँ पे आपको ये इंपोर्ट करना है डेटा, तो A1 सेल में मुझे इंपोर्ट करना है, तो फिनिश। तो आप देखोगे कि इसने पूरा मुझे अलग अलग कॉलम में ले जाके दे दिया डेटा। अभी थोड़ा ये ठीक दिख रहा है डेटा, मैं थोड़ा बहुत इसको एनालाइज कर सकता हूँ कि सीरियल नंबर है, ये सेक्शन है, ट्रांजेक्शन डेट, तो मैं ऑटो फिट थोड़ा कर देता हूँ। ओके तो ये आपका डेटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो सब इसका स्टेटस वेटस फाइनेंशियल ईयर आ गया, डिडक्टर का नाम आ गया, उसका टैग नंबर, देन सीरियल नंबर 126 194 सी में डिडक्ट हुआ है, देन सेकंड वाला, थर्ड वाला। बट अभी भी ये पाइवेट के लिए रेडी नहीं हुआ है डेटा। इसमें आप हर पार्ट देखोगे कि इसमें एक्सपोर्ट हो जाता है, बट अभी भी आप ये डेटा का पाइवेट नहीं बना सकते, क्योंकि पाइवेट के लिए क्या है, आपको एक तो सब कॉलम हेडर्स अच्छे से चाहिए, कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कोई भी रो फील्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए, और आपको इधर सब रिपीट करना पड़ेगा। ये जो नाम आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसके बिना आप डिडक्टर का नाम लेके नहीं आ सकते, तो आपको अच्छे से फॉर्मेटिंग में करना है। तो वो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम फिल्टर लगाएंगे। तो अगर आप सपोज यहाँ पे रख के फिल्टर लगाते हो इन कॉलम A7, तो डेटा टैब फिल्टर, अब देखोगे यहाँ पे वो ऑटोमेटिक फिल्टर लगा देता है। तो सपोज मुझे यहाँ पे आप चेक करना है यहाँ पे सब आया है कि नहीं, तो यहाँ पे आप देखोगे खाली एक ही पार्टी आ रही है, फर्स्ट वाली पार्टी, और 6 सीरियल नंबर है वो आ रहा है। तो ऐसा क्यों ये पकड़ रहा है कि मतलब ये डेटा पूरा क्यों नहीं कैच करा? क्योंकि हम देखोगे यहाँ पे ब्लैंक रो है, तो यहाँ पे फिल्टर क्या करता है कि अगर ब्लैंक रो इसको कहीं पे भी मिलता है तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है, वहीं तक का डेटा वो फिल्टर में लेके आता है। तो अगर मुझे पूरा डेटा अगर फिल्टर में इंक्लूड करना है, so what I will do, I will remove the filters, I will go on cell A7 and I will press Ctrl Shift End, END, Ctrl Shift End button to select my data till the end, and I will then apply the filter, data type filter. The shortcut is Ctrl Shift L, you can see here Ctrl Shift L, so I will press Ctrl Shift L to apply the filter. अब देखोगे कि सब फिल्टर अभी लग गए हैं और इसमें सब डेटा आ रहा है कि लेटेस्ट चेक, यस सब डेटा मेरा आपको दिख गया, सब पार्ट दिख रहा है, सबके नाम दिख रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट थिंग इज am I audible? Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you. Just a minute. So continuing with this,
तो अभी आप देखोगे फिल्टर मैंने लगा दिया है। इसमें आप अगर इसका स्ट्रक्चर अगर आप पैटर्न देखोगे कि किस तरीके से ये एक्सपोर्ट हुआ है डेटा, तो इसमें आप देखोगे कि नाम के नीचे सीरियल नंबर आ रहा है। यहाँ पे डिडक्टर का नाम आ रहा है, उसके नीचे सीरियल नंबर आ रहा है। यहाँ पे उसके नीचे, उसके जस्ट नीचे वाले रो में सीरियल नंबर आ रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे। तो इससे हम पैटर्न एक रिकग्नाइज कर सकते हैं कि डेटा इस तरीके से है कि जहाँ पे नाम है उसके नीचे जस्ट सीरियल नंबर है। तो मुझे उसके यहाँ पे नाम लेके आना है। तो पहले तो अगर मैं इसको सपोज फिल्टर करता हूँ, उसके सामने सीरियल नंबर लिखा है, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे नाम है, उसके नीचे सीरियल नंबर लिखा है और उसके बाजू में 1 है, और यहाँ पे सेकंड से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसके सामने नाम लिखा है। यहाँ पे थर्ड है, इसके सामने नाम लिखा है। तो इफ आई फिल्टर ऑन नंबर्स ओनली ऑन सीरियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग ब्लैंक्स एंड दिस, तो आप देखोगे कि आपको डिडक्टर वाइज एक समरी मिल जाता है। ये डेटा आप फिर कहीं दूसरे शीट में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आपको डिडक्टर वाइज डिटेल मिल गया कि ये डिडक्टर का ये पेन है, 10 ऑफ डिडक्टर ये 10 है, और उससे टोटल इतना अमाउंट पे किया और इतना अमाउंट दिया है, उस पर इतना टीडीएस डिडक्ट किया है मेरा, और इतना डिपॉजिट किया है। तो एक डिडक्टर वाइज आपको समरी मिल जाता है जो कि आपको पीडीएफ से भी मिल जाएगा। बट इसमें अगर आपको चाहिए कि आपको सेक्शन वाइज समरी देखना है कि 194C में आपका टोटल किसने किस, तो उसके लिए आपको पाइवेट बनाना पड़ेगा। तो पाइवेट के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, ये आपको ध्यान से देखना समझना पड़ेगा प्रोसेस, क्योंकि बहुत आगे भी आपको काम में आने वाला एक कॉमन प्रोसेस है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस। So first I will repeat the names. I will bring the names here. एक अलग कॉलम में मैं एक नेम लेके आ जाऊंगा सब। यहाँ पे जो भी नेम है वो मुझे सीरियल नंबर के लेफ्ट में चाहिए। तो मैं सीरियल नंबर को बेस लूंगा। आई विल कॉपी दिस सीरियल नंबर एंड यहाँ पे मैं एक सिंपल सा इफ कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करूंगा। इफ दिस सेल contains the word serial number, then give me the output on the cell above it, B8, else give me blank. Blank can be represented with this double quotes. ये आपको याद रखना है कि डबल कोट्स अगर आप कुछ भी अंदर मेंशन नहीं करो मतलब वो ब्लैंक आउटपुट देगा। क्लोज द ब्रैकेट। तो इसमें आप देखोगे नाम आ गए। अगर आप इसको नीचे कॉपी करोगे, फिल इट डाउन, आप देखोगे जहाँ पे सीरियल नंबर है वहाँ पे ये ऊपर वाला सेल का जो भी नाम लिखा है वो लिखे आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं पूरा नीचे तक कॉपी कर लेता हूँ यूजिंग कंट्रोल डी। तो टिल हियर आई एम कॉपिंग कंट्रोल डी। तो यहाँ पे सबका नाम आ गया। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप इज, आप देखोगे कि इधर अगर आप वेरीफाई करोगे कि सेल एक्चुअली में ब्लैंक नहीं है। वेट अ मिनट, इसको पहले मेरे को वैल्यू पेस्ट करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला डाल दिया पर मुझे फॉर्मूला भी दिखना नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ वैल्यूज आनी चाहिए, यहाँ पे फॉर्मूला चला जाना चाहिए। I will select the entire column. I will copy it. I will press Ctrl Alt V for paste special and select your values. फिर वैल्यू पेस्ट हो जाएगा सेम कॉलम में। तो अभी आप देखोगे कि सिर्फ नाम दिख रहे हैं। अब भी फॉर्मूला चला गया, ताकि कुछ भी चेंज ना हो इसके लिए आई हैव रिमूव द फॉर्मूला। अभी आप अगर ब्लैंक चेक करोगे तो देखोगे कि ये फॉल्स आ रहा है। ये दिख रहा ब्लैंक है बट एक्चुअली में ब्लैंक है नहीं। आप लेंथ भी अगर इसका चेक करोगे तो लेंथ 0 आ रहा है बट एक्चुअली में ब्लैंक नहीं है। तो टू मेक इट ब्लैंक यू हैव टू गो ऑन दैट सेल एंड प्रेस द डिलीट बटन, एंड इफ यू प्रेस द डिलीट बटन इट विल शो ट्रू। तो मतलब जहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा है मुझे सब जगह डिलीट प्रेस करना है। तो अभी इसके लिए व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली फिल्टर ऑल द ब्लैंक्स। Okay, I will select all and press delete. इसमें विजिबल सेल्स करने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्योंकि फ्रॉम एक्सेल 2010 एक्सेल इज हैज बिकम वेरी मच स्मार्ट। उसको समझ जाते कि फिल्टर में जो आपने सिलेक्ट किया है उसी में आप डील कर रहे हो अभी। तो अब वो जो हिडन रोज है उसमें वो कुछ अफेक्ट नहीं करेगा आप जो भी ऑपरेशन करते हो। तो आई विल क्लियर ऑल फिल्टर्स
इसमें आप देखोगे कि अभी अगर चेक करोगे इस ब्लैंक तो अभी सब जगह 2 आएगा। ठीक है, तो अभी ये सेल्स आर एक्चुअली ब्लैंक। अभी मैंने क्यों ब्लैंक किया, इसका नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चलेगा। अभी मुझे नाम यहाँ पे सब रिपीट करने हैं कि ये नाम मुझे यहाँ तक रिपीट हो जाने चाहिए, एंड ये जो है मुझे यहाँ तक रिपीट होना चाहिए। जितने सेक्शन है उतने लाइन आइटम तक रिपीट हो जाना चाहिए, ताकि आई कैन पुट दिस कॉलम इन रो एरिया ऑफ द पिवट टेबल डायरेक्टली। तो इसका वो यूनिक मुझे लाके दे देगा। ये नाम मुझे यहाँ तक रिपीट करना है सपोज, तो ये इसका शॉर्टकट क्या है। अगर आप एक एक करने जाओगे तो इट इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि बहुत सारे डिटेक्टर्स है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है जो कि एक फेमस ट्रिक आप बोल सकते हो। अब पूरा डेटा यहाँ से एंड तक सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ओके, मेरा डेटा यहाँ तक है, मेरा पूरा सिलेक्ट किया। देन यू हैव टू गो टू होम टैब, find and select, go to special. Shortcut is Control G. I will use Control G to go to special. and यहाँ पे special, and यहाँ पे आपको blank select करना। चाहता हूँ कि जो भी मैंने select किया एक कॉलम में, वो रेंज में जो भी blank सेल्स है सिर्फ वो सब select हो जाए। ओके, तो ये सब आप देखोगे कि सब blank सेल्स select हो गई है ये रेंज में जो भी है, और जिसमें कुछ भी अगर लिखा हुआ है तो वो select नहीं हुआ है। So the next step is press equals to and link it to the cell above just। ये सेल से मुझे लिंक करना है A9, and then I will not press enter, I have to press control enter। तो control enter क्या करेगा, control enter will fill this formula in all the selected cells। जो भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि इक्वल्स टू लिंक इट विथ अबाउ सेल, मेरे सब सिलेक्शन में ये कॉपी कर लेगा ये फॉर्मूला। तो कंट्रोल एंटर, तो आप देखोगे कि सब जगह ऑटोमेटिक ये रिपीट हो गई है ना, कि ये यहाँ पे ऊपर वाले से लिंक हो गया, 29 में 28 से लिंक हो गया, 30 में 29 से लिंक हो गया। एंड क्योंकि ये 27 वाला सिलेक्टेड नहीं था, इसके लिए यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब देखोगे कि यहाँ से लिंक हो गया, ये यहाँ से लिंक हो गया। तो दिस इज जस्ट अ मैजिक और यू कैन से ट्रिक टू रिपीट द लेबल्स बिलो। तो मैंने ऐसा क्यों किया, तो इसके पाइवेट टेबल जब मैं बनाऊंगा तब आपको समझेगा। तो इसमें जो फॉर्मूला जो आ रहा है इसको मैं सिलेक्ट करके वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ ताकि कुछ आगे दिक्कत ना हो। कंट्रोल ऑल्ट वी, वैल्यूज पेस्ट। अभी सब फॉर्मूलाज चले गए हैं, खाली वैल्यूज दिख रहे हैं। ओके, तो अभी मुझे अगर पिवट टेबल बनाना है तो मुझे और थोड़ा बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें एक तो कॉलम हेडर्स मुझे सब एक रो में आने चाहिए। तो कॉलम हेडर्स के लिए मैं क्या करूँगा, सपोज ये मेरे कॉलम हेडर्स इधर नीचे आ रहे हैं तो आई विल शिफ्ट इट टू देम अप। यहाँ पे ठीक है, टोटल टेक्स्ट डिडक्टेड, ठीक है, यहाँ पे अभी सब कॉलम हेडर्स विजिबल है। तो मेरे सीरियल नंबर वाले कॉलम में नेम ऑफ डिडक्टर आ रहे हैं, सेक्शन मेरा इसमें आ रहा है, 10 ऑफ डिडक्टर में मेरा सेक्शन आ रहा है। तो दिस 2 कॉलम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, serial number column and 10 of deductor column, and this amount column, amount paid credited and tedious deposit। तो इसके बेसिस में मैं अपना pivot table का स्ट्रक्चर करूँगा। So for that I will select my whole data till end, जहाँ तक मैंने किया है। To insert a pivot table I will go to insert tab, I will select pivot table, and in the new worksheet, yes I want my pivot table to my new worksheet। okay, अब देखोगे आपका पिवट टेबल का ढांचा तैयार है। तो इसमें आप देखोगे कि आपको पहला सीरियल नंबर कॉलम लेना है, तो आप उसको रोज में डाल दोगे। तो इसमें आपके सब जो डिडक्टर्स के नाम है उसका एक यूनिक लिस्ट क्रिएट हो गया। एंड देन आपको 10 ऑफ डिडक्टर कॉलम चाहिए था, करेक्ट, जिसमें आपके सेक्शन है। यहाँ पे 10 ऑफ डिडक्टर में आपके सेक्शन मेंशन्ड है। तो आई विल ब्रिंग द 10 ऑफ डिडक्टर कॉलम। ओके, 10 ऑफ डिडक्टर, तो इसमें सेक्शन आ गए, बाकी उसके 10 जो एक्चुअली में मेंशन थे वो भी आ गए, वो तो हम बाद में निकाल लेंगे। ओके, सो मूविंग फर्दर आई विल
bring total amount in values column, as this is a column containing figures, total TDS deposited. Okay, now let me close this. इसमें हम देखो कि बाय डिफॉल्ट काउंट आ रहा है. काउंट आने के 3 रीजन होते हैं. अगर आपके कॉलम में, ये कॉलम में कहीं पे भी ब्लैंक सेल है, जो कि है ऑफ कोर्स, या तो कोई भी टेक्स्ट सेल है जो कि ऑब्वियसली है, अमाउंट पेड क्रेडिटेड ये सब लिखा हुआ है, या तो थर्ड कोई भी एरर है कि रेफरेंस एरर, डिवीजन एरर या कोई भी एरर है, तो उधर वो बाय डिफॉल्ट काउंट पकड़ेगा आपका पिवट टेबल. तो इसको आपको अगर सम में कन्वर्ट करना है, सिंपली डबल क्लिक ऑन द हेडर एंड चेंज इट टू सम. यहाँ पे भी डबल क्लिक ऑन द हेडर एंड चेंज इट टू सम. अब देखोगे आपका मोटा मोटी टेबल तैयार है, पर इसमें भी अभी बहुत कुछ फॉर्मेटिंग करना है. सबसे पहला फॉर्मेटिंग मुझे कि सेक्शन नंबर सिर्फ दिखना चाहिए. यहाँ पे जो सेक्शन नंबर है बाकी सब हटाना है. तो आप वो कैसे कर सकते हो, सेक्शन नंबर जो भी है वो सब 19 से स्टार्ट होगी, करेक्ट, कि सब 190 वाले टीडीएस के सेक्शन से अपने. तो मैं 19 से शुरू होने वाले पे फिल्टर कर देता हूँ कि इसमें मुझे, आप देखोगे कि अभी इसका जो है ये रो लेवल एक कॉलम में आपके 2 चीज आ रहे हैं. एक तो आपका डिडक्टर नाम भी आ रहा है और सेक्शन भी आ रहा है, तो 2 कॉलम आ रहे हैं बेसिकली, क्योंकि कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में आपका इसका लेआउट. तो इसमें आपको कौन से इस पे फिल्टर लगाना है वो आपको इधर बताना पड़ेगा. तो मुझे 10 वाले कॉलम पे फिल्टर लगाना है. तो 10 वाले कॉलम पे किस पे फिल्टर लगाना है, लेबल पे या वैल्यू पे. वैल्यू मतलब कि ये दोनों कॉलम, सम ऑफ टोटल अमाउंट एंड सम ऑफ टीडीएस डिपॉजिट, बट मुझे लेबल पे फिल्टर लगाना है इसके. तो लेबल पे फिल्टर इतने सारे ऑप्शंस है. तो आई वांट कि इट शुड बिगिन विथ 19, तो बिगिन्स विथ 19. ओके, तो आप देखोगे कि ये पार्टी का 194 सी में डिडक्ट हुआ है. बैंक ऑफ बड़ौदा 194 ए मुझे इंटरेस्ट पे कर रही है, तो उस पर 10% डिडक्ट कर रही है. इन हर एक पार्टी का सेक्शन वाइज आपको मिल गया. बट अभी भी इसमें एक दिक्कत है कि इसमें सब 2 बार आ रहे हैं, मतलब कि सब टोटल्स भी आ रहे हैं इसमें. मुझे सब टोटल्स हाइड करना है, तो उसके लिए व्हाट आई विल डू इज, wait a minute, let me hide this panel. Okay, so I will go to design tab and इसमें आप देखोगे सब टोटल्स का ऑप्शन है. सब टोटल्स, डू नॉट शो सब टोटल्स. तो सब टोटल सब गायब हो गए. ठीक है, ये दोनों जो टैब दिखता है आपको, एनालाइज एंड डिजाइन, ये आपको तभी मिलेगा तब आप प्राइवेट टेबल के अंदर हो, क्योंकि कॉन्टेक्चुअल टैब है. ये पिवट टेबल अगर एक्टिव रहेगा तो ही आपको दिखेगा. अगर आप पिवट टेबल के बाहर कहीं पे क्लिक करते हुए दोनों टैब गायब हो जाएंगे, क्योंकि यू आर नॉट इन द पिवट टेबल. तो कहीं पे भी आप पिवट टेबल के अंदर क्लिक करोगे यहाँ पे टैब आ जाएगा. तो अभी नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज, ये जो सेक्शन है ये नाम के सामने आने चाहिए. ये मुझे चाहिए कि बी कॉलम में मेरा सेक्शन आ जाए, ताकि मैं अच्छे से फिल्टर करके वेरीफाई कर सकूं कि ये पार्टी का कौन से सेक्शन में कट है. तो फॉर दैट आई विल गो टू डिजाइन टैब, रिपोर्ट लेआउट. करेंटली इट इज इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, इसलिए आपको दोनों कॉलम ए कॉलम में ही दिख रहे हैं कि मेरा डिडक्टर कॉलम भी और सेक्शन वाला कॉलम दोनों ए में आ रहा है. तो आई विल स्विच इट टू टेबुलर फॉर्म. आप यहाँ पे डिजाइन देख सकते हो कि ये स्प्लिट हो जाता है दोनों कॉलम में. तो अभी थोड़ा मेरा समरी अच्छा दिख रहा है, करेक्ट. तो इसमें मेरे इसमें नाम आ गए, जो कि मैं इधर नाम चेंज कर सकता हूँ, जो नेम ऑफ डिडक्टर. ओके, इसमें कुछ नाम चेंज करने से आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया, तो रहने दो, एक बार सीरियल नंबर रहने दो. इसमें 10 ऑफ डिडक्टर जो मैंने फिल्टर किया है, इसमें जो ये प्लस माइनस का साइन दिख रहा है ये भी आप हाइड कर सकते हो. ओके, तो अभी एक आपका एक नॉर्मल टेबल जैसा ही बन गया. इसमें आप नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हो अमाउंट्स को. सिलेक्ट ऑल, नंबर फॉर्मेट, नंबर, use thousand separator and don't use decimals. Okay, and same format I want it here.
तो इसमें आप देख सकते हो इतने पार्टीज है टोटल, उनका ये सेक्शन में कट है। आप सेक्शन पे अभी तुरंत फिल्टर लगा सकते हो। सपोज आपको 194A में देखना है, तो 194A में 3 पार्टी का कट है और इतना इतना अमाउंट है। तो अगर आपको इसको कंपेयर करना है तो आप यहाँ पे एज पर बुक्स का आप कॉलम बना सकते हो, जो कि आपको अगर टैली से फिगर्स कंपेयर करने तो एज पर बुक्स, यहाँ पे एक डिफरेंस का कॉलम आपका आ जाएगा। बट इसमें भी एक छोटा सा एक प्रॉब्लम है। ये जो अभी टेबल बना है, ये डिडक्टर वाइज ही टेबल बना है। तो अगर मुझे इसको सेक्शन वाइज टेबल बनाना है, कि मुझे चाहता हूँ कि एक एक सेक्शन मुझे फिल्टर करके नहीं देखना कि 194C में कितना है, देन IA में कितना है, एक एक फिल्टर करके देखना फटाफट। तो व्हाट आई कैन डू इज आई हैव टू मेक अ स्मॉल चेंज। आई विल गो टू फील्ड, शो फील्ड लिस्ट। मुझे सिंपली ये 10 नंबर जो है इसको ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो पहले मेरा ये कॉलम आ जाएगा एंड देन द सेकंड कॉलम। ओके, सो मैं इसको रिसाइज कर देता हूँ कॉलम को। तो इसमें आप देख सकते हो अभी सेक्शन वाइज समरी बन गया, विच इज अमेजिंग। हम कहाँ से ये डेटा से हमने पूरा पिवट टेबल इतना अच्छा से फॉर्मेट करके बना दिया है। अभी इसमें आप चाहे तो सब टोटल्स को ऑन कर सकते हो, डिजाइन टैब, सब टोटल्स, शो सब टोटल्स एट बॉटम ऑफ ग्रुप। तो इसमें सेक्शन वाइज टोटल भी आ गया कि 194A में टोटल इतना है, 194C में टोटल इतना है। अगर आप चाहते हो कि 194C यहाँ पे रिपीट होना चाहिए पूरा, इसके लिए भी पिवट टेबल में ऑप्शन है, डिजाइन टैब, रिपोर्ट लेआउट, रिपीट ऑल आइटम लेवल, तो ये सब रिपीट हो जाएगी। इजंट दिस ग्रेट। तो इसमें आपका सब 194A का समरी बन गया, 194C का पूरा समरी बन गया विद सब टोटल्स। आपको डायरेक्टली यहाँ पे अगर टैली के फिगर्स आपके पास अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टैली के फिगर्स लिख सकते हो। सपोज ये 10 लैक्स है और यहाँ पे डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो सिंपली दिस। ओके, गेट पिवट डेटा, ये भी एक दिक्कत है पिवट टेबल में। तो ऑटोमेटिक हम अगर पिवट टेबल से कुछ भी लिंक करते हैं तो वी गेट दिस गेट पिवट डेटा, वी वांट टू गेट रेड ऑफ दिस फंक्शन। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक है, Sir, your voice is not audible. Sir, the voice is not coming. Sir, I'm sorry.
Sir, are you able to listen? The voice is not coming. Hello, am I audible? Yes, sir.